अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्लाह करम। अच्छा जी, हाँ जी, शुरू अभी करें लाइव। अपना सेशन जी। हम फेसबुक पे लाइव आ चुके हैं। जी हम बिल्कुल लाइव आ चुके हैं और स्टूडेंट्स को हमारी आवाज भी आ रही है एंड दे हैव स्टार्टेड कमेंटिंग एज वेल। थैंक परफेक्ट यू, परफेक्ट। thank you guys for joining us today. My name is Mohammed Salman Ghaffar and I am one of the lead instructors of the IBA test prep at Anis Hussain, and in fact I'm also the CEO of the organization. And with me is my brother Irfan, who's the director in the organization. And we shall be talking to you today about IBA's admission tests, their various requirements, and the advantages that you will have by going into IBA, inshallah. हमने सोचा कि मैं और इरफान साथ मिलकर ये प्रेजेंटेशन करते हैं ताकि हम इसको एक डिस्कशन फॉर्मेट में ज़्यादा करें और साथ में हम आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ भी बता सकें कि हमारा एक्सपीरियंस आईबीए में कैसा रहा और इतने सालों से जो हम आईबीए के टेस्ट की तैयारी कराते हैं उसमें हमने क्या चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, कहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं। सो हम दोनों साथ इस डिस्कशन को लेके चलेंगे। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि दिस शुड बी अबाउट हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स, होपफुली नॉट लॉन्गर देन दैट. We want to keep it short and simple, and you guys are welcome to keep asking your questions. I have a window open on my right side where I can see your comments as well. And I will try to make sure that I'm answering all your questions along the way as well. If there are certain questions that I believe कि जो slides में आगे जाके answer हो जाएंगे, so I'll just tell you to hold on and wait for those. But if there's a question that I think is important, needs to be answered there and then, we'll try to answer there and then as well. ठीक है जी? इरफान, आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? I hope. ऑल क्लियर ऑल क्लियर। Excellent, excellent. शुरू करते हैं भाई. This is me. My name is Mohammed Salman Ghaffar. I graduated from IBA in '99 with an MBA with a focus in finance. I was always a numbers guy. I enjoyed accounting and finance a lot, and that was my area of expertise. I started teaching at a very young age, in the year 1995, which is when I was applying for IBA. So my math was good, so I started teaching, and उस वक्त से लेके मैं अब तक अनीस हुसैन साहब के साथ हमेशा से रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हूँ. And उसके अलावा I worked at Procter & Gamble, I worked at Habib Bank. This is my career जो मैंने graduate होने के बाद शुरू किया था. But in about 3 years later, after I graduated, I decided to become a full-time faculty member at Anis Hussain and make a career in teaching. So alhamdulillah, that has been my career. This is Irfan. Irfan, why don't you tell them about yourself? I did my O levels back in the year 98 and A levels in 2000, and that's when I started teaching. So alhamdulillah, it's been a 23-year journey since then. Immediately after my A levels, I started teaching at Anis Hussain, and I started preparing students for the IB admissions test, for the LUMS admissions test, for the SAT and the GMAT and the GRE. I've also done my bachelor's and master's from IBA. I was a marketing major. After graduating from my EBA, I worked in the corporate sector briefly. I worked for PSO and I worked for Habib Bank in the corporate banking division. And throughout my student life at IBA and throughout my corporate career, I was teaching part-time. I was teaching part-time in the evenings, on the weekends, 4 to 5 days a week. And in the year 2006, I eventually quit my job to join Anis Hussain full-time. And since then, I've been a director at the organization. My focus has been on expanding the organization and making sure that students get the same quality at all of our campuses. Thank you so much. आज के सेशन पर मैं छोटा सा एक ओवरव्यू दे दूं. एक मेन मकसद ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे रीच आउट किया था और उनके वेरियस कंसर्न्स थे कि IBA के एडमिशन प्रोसेस किस तरह का होता है, टेस्ट में क्या आता है, क्या वो सैट से सिमिलर है या नहीं है, क्या स्टूडेंट को सैट का टेस्ट देना चाहिए, क्या उसको IBA का टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए, अगर कोई स्टूडेंट IBA में जाना अफोर्ड नहीं कर सकता तो क्या स्कॉलरशिप ऑप्शन उसके पास अवेलेबल हैं. So we've tried to put all of those questions together in today's information session, and we will try to answer all of your queries as we go along. Thank you, Irfan, for your introduction. So as you can see, like older brother, like younger brother, इरफान जो है वो मुझे फॉलो करते रहे हैं, स्कूल में भी फॉलो करते रहे हैं और यूनिवर्सिटी में भी फॉलो करते रहे हैं, और इनके बाद नुमान है, उन्होंने भी फॉलो किया अल्हम्दुलिल्लाह, और रयान उन्होंने भी फॉलो किया. चले जी,
बिस्मिल्लाह करते हैं जी। अच्छा, लेट्स स्टार्ट ऑफ बिजनेस एजुकेशन के बेनिफिट्स के ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन, नॉट टू लॉन्ग। क्या पाकिस्तान में बिजनेस एजुकेशन का जो करियर है उसमें क्या आपको फवायद मिलते हैं? जो पहली चीज है वो ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर बिजनेस डिग्री के मल्टीपल करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। बिजनेस, आपको मालूम है, पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर फील्ड है और आपको अक्रॉस ऑल सेक्टर्स अच्छे करियर ऑप्शंस मिलते हैं, टॉप लीडरशिप पोजीशंस ओपन हो जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अगर आपका फैमिली बिजनेस है, आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए बिजनेस एजुकेशन बहुत यूजफुल है। अगर आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, सो फॉर एग्जांपल मेरा जो था वो बिजनेस से ज्यादा इंटरेस्ट था, रुझान था। My father was into business, so I always saw him doing business, and I felt motivated to do something on my own as well. So this was the reason why I went into a business education. सो पर्सनल इंटरेस्ट भी होता है और फिर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव भी है। हमारे यहाँ जो बिजनेस करियर्स हैं उनकी सैलरी पैकेजेस अच्छे होते हैं, करियर ग्रोथ अच्छी होती है। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि बहुत सारे आईबीए ग्रेजुएट्स और टॉप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स जो हैं वो इवेंचुअली बाहर जाके भी एक अच्छा करियर बिल्ड करते हैं और सक्सेसफुल करियर्स बिल्ड करते हैं। मिडिल ईस्ट में आपको बहुत पाकिस्तानी आईबीए ग्रेजुएट्स मिलेंगे, लम्स ग्रेजुएट्स मिलेंगे जिन्होंने जाके एक अच्छा करियर बिल्ड किया हुआ है। मेरे बहुत सारे क्लास फेलोज इस वक्त जो है वो मिडिल ईस्ट में है, नॉर्थ अमेरिका में है, यूरोप में है, and they're doing really really well. So it's an excellent career in terms of, आज भी लोग मुझसे पूछते हैं कि sir is it it's a good career? I mean it's a brilliant career. Business, आपको मालूम है, it's something that's popular throughout the world. So there's no reason why it should not remain popular. So therefore there are a lot of benefits. चाहे आप अंडरग्रेड में अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हो। एक बड़ा कॉमन सवाल ये भी होता है कि जी क्या हम बीबीए करें या हम कोई बीएस करें और उसके बाद में फिर हम एमबीए करें। वो आपकी अपनी प्रेफरेंस होती है। आई डू अग्री कि बीबीए एक काफी जनरल प्रोग्राम है। अगर आप बीएस करते हैं लाइक अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या इकोनॉमिक्स, तो हो सकता है अगर आपको उस पर्टिकुलर फील्ड का ज्यादा शौक है तो आप उस फील्ड में पहले बैचलर्स करें, अंडरग्रेड करें और फिर आप एमबीए कर लें। बट ऑन द फ्लिप साइड, बीबीए के अंदर जो आपको वेल राउंडेड अप्रोच मिलती है वो आपको बीएस में नहीं मिलेगी। आप जिस पर्टिकुलर करियर में जाएंगे, अकाउंटिंग फाइनेंस हो गया या इकोनॉमिक्स हो गया, उसमें आप फिक्स्ड हो जाएंगे। सो देयर आर प्रोज एंड कॉन्स टू बोथ। आई बिलीव अप्लाई करने के बारे में जब सोचें तो इसको थोड़ा सा कंसिडर कर लें और आईबी की वेबसाइट पे रिव्यू कर लें जो कोर्सेज हैं उसमें आपको क्या इंटरेस्टिंग लगता है। इरफान, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? बीएस ज्यादा बेहतर रहेगा या अंडरग्रेड में बीबीए बेहतर रहेगा? एक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रेगुलर बेसिस पे ये कहते हैं कि भाई हम ये सुन रहे हैं कि बिजनेस डिग्री में सैचुरेशन बहुत हो गई है। तो चूंकि हमारी मार्केट साइज बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है तो ऑब्वियसली हर फील्ड में आपको सैचुरेशन मिल सकती है। बट अगर आप बिजनेस डिग्री या जो भी डिग्री आपको इंटरेस्ट करती है वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी से करते हैं तो उसकी मार्केट डिमांड हमेशा रहेगी एंड डेफिनेटली आईबीए की मार्केट वैल्यू बहुत स्ट्रांग है। सो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि जी अगर आप बिजनेस डिग्री करना चाहते हैं तो यू अप्लाई टू द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस जो आपके सामने हैं। जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा इंशाल्लाह आपके करियर ग्रोथ के चांसेस उतने बेहतर हैं। बाकी जो आपका क्वेश्चन था विद रिगार्ड्स टू बीबीए एंड अकाउंटिंग फाइनेंस, अगर स्टूडेंट्स ने ये डिसाइड किया हुआ है कि हमें एक पर्टिकुलर एरिया में मेजर करना है, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग साइड पे जाना है, फाइनेंस साइड पे जाना है या आगे जाके हमें एसीसी या सीए परसू करना है, तो फिर उनके लिए अकाउंटिंग फाइनेंस का रूट बेहतर है। बट अगर स्टूडेंट्स ने मार्केटिंग साइड पे जाना है या सेल साइड पे जाना है या एचआर के साइड पे जाना है तो उस केस में डेफिनेटली बीबीए डिग्री बेहतर है। इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स तो बीबीए भी फाइनेंस मेजर कर लेते हैं जैसे कि आपने। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और स्पेशली अगर आप अनश्योर हैं कि आपने इवेंचुअली करना क्या है या आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा फ्लेवर मिले, आप चूज कर सकें कि आपको मार्केटिंग में ज्यादा इंटरेस्ट होगा या फाइनेंस में होगा। अगर आपका इतना एक्सपोजर नहीं है तो फिर आई थिंक बीबीए मेक्स मोर सेंस, ताकि एटलीस्ट आप जाएं तो आपके पास ऑप्शन तो हो। वरना बाद में आप अगर आप अकाउंटिंग फाइनेंस में गए और अगर आपको मजा नहीं आ रहा तो आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा स्विच करना टू बीबीए। ऐसा ही है। आई एग्री। अच्छा, मैं फेसबुक पे नोटिस कर रहा हूँ कि मेरी कैमरा फीड नहीं आ रही, तो आपके पास भी ये प्रॉब्लम आ रहा है? नहीं, जब आप बात करना शुरू करते हैं तो आपकी फीड आ जाती है, जब मैं बात करना शुरू करता हूँ तो मेरी फीड आ जाती है। ऑलराइट ऑलराइट। It's choosing the speaker. राइट, ओके जी, लेट्स मूव ऑन। तो अच्छा जी, आईबीए का एडवांटेज क्या है? अच्छा जी, इस बारे में तो कोई दो राय नहीं है। आईबीए इज वन ऑफ द टॉप बिजनेस स्कूल्स इन पाकिस्तान। लम्स और आईबीए दोनों का कंपटीशन रहता है कि जी नंबर 1 पे कौन है।
मैं क्योंकि आईबी ग्रेजुएट हूँ तो मेरा एक आईबी की तरफ बायस है, बट ऑब्वियसली लम्स इज आल्सो वेरी गुड. But let's talk about IBA right now. So, one of the oldest business schools in the world, not just in Pakistan, and the oldest business school in Pakistan was set up in 1955. और लीडिंग अमेरिकन यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने हेल्प किया था, असिस्टेंस प्रोवाइड की थी. इसमें वॉर्टन का नाम आता है, आईबी की वेबसाइट मौजूद है, जिन्होंने हेल्प किया था पाकिस्तान में आईबी को सेटअप करने में. फैकल्टी बहुत स्ट्रांग है, अलमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ हुआ है आईबीए में. वन ऑफ द most beautiful campuses in Pakistan, both the city campus and the university campus. और आपको काफ़ी अमेजिंग किस्म की बिल्डिंग्स और फैसिलिटीज़ मिलती हैं वहाँ पे. और उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर्स बहुत अच्छे हैं, और हाई मार्केट वैल्यू है आईबी ग्रेजुएट्स की. यहाँ पे एक सवाल मुझसे पूछा गया है स्टूडेंट से कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस के बारे में भी जिक्र जरूर कीजिएगा. इंशाल्लाह आपको जरूर बताएंगे. कंप्यूटर साइंस आईबीए का बाय द वे इज एक्सलेंट. इनफैक्ट मैंने रिसेंटली फीडबैक भी लिया इंडस्ट्री के लोगों से, और उसमें वो कहते हैं कि जी आईबीए, हबीब और फास्ट, ये 3 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिसके इस वक्त टॉप जा रहे हैं कराची से एटलीस्ट ग्रेजुएट्स फॉर कंप्यूटर साइंस. सो अगर आपका मूड है कंप्यूटर साइंस की तरफ जाने का तो आईबीए इज एन एक्सलेंट सोर्स, उसको जरूर कंसिडर कीजिएगा. ठीक है जी. अच्छा, अब ये हमारे प्लस पॉइंट्स हैं आईबीए के बारे में. इरफान, इसमें आपको चैट करना चाहेंगे यहाँ पे? आईबी के बारे में बस एक तो रेगुलर एडवांटेजेस हर यूनिवर्सिटी के होते हैं कि जी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है या फैकल्टी नेटवर्क बहुत अच्छा है. बट आईबीए का एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज ये है कि आईबीए का अलमनाई नेटवर्क, क्योंकि आईबीए इतना पुराना इदारा है, इट्स बीन ऑपरेटिंग फॉर द पास्ट 70 इयर्स ऑलमोस्ट. तो आईबीए का Absolutely. अलमनाई नेटवर्क बहुत वेल सेटल्ड है पाकिस्तान में, एंड जैसे कि सलमान भाई ने मेंशन किया, इंटरनेशनली मिडिल ईस्ट के अंदर और नॉर्थ अमेरिका में तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस मिलती है आईबीए ग्रेजुएट्स की. इनफैक्ट भी रिसेंट डायरेक्टर साहब आए हुए भी थे यहाँ पे, कनाडा आए हुए थे, और एलुमनाई इवेंट था लास्ट वीक, और उस पे आके इन्होंने मुलाकात की. इनफैक्ट ही इज डूइंग अ नॉर्थ अमेरिकन टूर राइट नाउ, मीटिंग द एलुमनाई इन यूएस एंड कनाडा एज वेल राइट नाउ. वेरी गुड, वेरी गुड. तो आईबीए के अलुमनाई नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि जब आप उस डिग्री के साथ मार्केट में जाते हैं तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है, एंड पीपल आर विलिंग टू गिव यू अ चांस. आपको इंटरव्यू में एटलीस्ट बुलाया जाता है टू प्रूव योरसेल्फ. जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जी. एक सवाल आ रहा है कि सीवीएम के बारे में जरूर बताइएगा. आज का सेशन हमने आईबीए की तरफ डेडिकेट किया हुआ है, बट हम आपको एंड में इंशाल्लाह एक सीवीएम के बारे में ओवरव्यू दे देंगे आपको. और उसके अलावा लोग सवाल अब स्पेसिफिक पूछ रहे हैं जी, कंप्यूटर साइंस करें या सॉफ्टवेयर करें. मैं आप सबके जवाब इंशाल्लाह दे दूंगा, और जो नहीं दे सकूंगा मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस दे दूंगा, आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा, व्हेन वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन अबाउट योर स्पेसिफिक सिचुएशन एज वेल. अच्छा जी, ये आईबीए के बारे में बात हो, आईबीए के फेमस अलुमनाई के बारे में बात ना हो, ये पॉसिबल नहीं है. तो कुछ चंद जो एक स्लाइड पे फिट आ सकते थे, ये वो लोग हैं जो कि आईबीए के टॉप ग्रेजुएट्स हैं. और ये यकीन मानिए बहुत ज्यादा हैं, एक स्लाइड पे डालने थे तो बहुत मुश्किल से चूज करना पड़ा. असद उमर साहब, आप मशहूर जमाना माशाल्लाह, फेमस पॉलिटिशियन, एक्स सीईओ ऑफ एंग्रो. आमिर पराशा साहब, यूनिलीवर. फयाज खान साहब मुझसे 1 साल सीनियर थे, आईबी में 98 के ग्रेजुएट हैं, सीईओ हैं एंग्रो के. फाद हारून साहब जीएसके के हैं. हसन फराज मेरे बहुत से दोस्त हैं, इनके बड़े भाई तो मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं. ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मर्स्क पाकिस्तान. Then Sabir Samin. Narbeen was again a couple of years senior to me. She's Mondelez में हैं, सिंगापुर में होती हैं. Sabir Samin KFC के डिवीजन सीईओ हैं. Kashan again a year junior to me, CEO of Reckitt, mashallah. So these are all people who have done really well, and that shows you कि IBA जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है. राइट, हमें बताने की जरूरत नहीं, बट हमने कहा चले एक स्लाइड डाल दें, आपको दिखा दें जी वो मशहूर लोग जो कि आईबीए ग्रेजुएट्स हैं. और इसके अलावा मेरे बहुत सारे क्लासमेट्स हैं जो कि बहुत अच्छी पोजीशंस में, बट मैं जानबूझकर कहीं डाला, बिकॉज मैं डालता तो लोग कहते हैं जी आप जो है ना वो बायस दिखा रहे हैं, तो मैंने जो है ना उनको साइड पे कर दिया. बट दे आल्सो डूइंग रियली वेल, सो एक्सीलेंट ग्रेजुएट्स ऑल ओवर. अच्छा जी, सो दिस टेल्स यू कि आईबीए के ग्रेजुएट्स माशाल्लाह अच्छी अच्छी पोजीशंस पे हैं दुनिया भर में. अब मेन अंडरग्रेड प्रोग्राम्स कौन से हैं जी? अच्छा, सवाल यहाँ पे आ रहा है कि जी क्या प्री इंजीनियरिंग के या प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स जा सकते हैं आईबीए? बिल्कुल जा सकते हैं जी, इसमें कोई मसला नहीं है, आप शौक से जाएं. बहुत सारे लोग प्री इंजीनियरिंग के बाद आईबी की तरफ जाते हैं, बहुत सारे लोग प्री मेडिकल के बाद आईबी की तरफ जाते हैं. सो ये हमारे आईबीए के अंडरग्रेड प्रोग्राम्स हैं.
7 प्रोग्राम्स हैं और बाय द वे IBA और प्रोग्राम्स इनमें ऐड करने वाले हैं, ये अंदर की खबर है। और सुना है कि इंशाल्लाह लॉ प्रोग्राम भी आने वाला है IBA के अंदर, बट डोंट टेल एनीबॉडी। अच्छा जी, तो सून वो भी आने वाला है। अच्छा, बट ये प्रोग्राम्स हैं जो भी नजर आ रहे हैं इस वक्त IBA के प्रोफाइल पे। इसमें हमारा BBA जो बड़ा पुराना प्रोग्राम है, सबसे पुराना अंडरग्रेड प्रोग्राम IBA का BBA का है। लम्स बाय द वे BBA ऑफर नहीं करता, IBA ऑफर करता है। उसके अलावा BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS इकोनॉमिक्स, BS सोशल साइंसेज, BS इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, BS कंप्यूटर साइंस एंड BS मैथमेटिक्स। इनको हमने 2 हिस्सों में इसलिए डिवाइड किया हुआ है बिकॉज ये जो लेफ्ट साइड पे लिस्ट है 4 प्रोग्राम्स की, इनका एडमिशन टेस्ट एक साथ होता है, और जो राइट साइड पे लिस्ट है 3 प्रोग्राम्स की, इनका जो एडमिशन टेस्ट है ये साथ में होता है। तो ये 2 टेस्ट अलग अलग होते हैं। जो जो राइट साइड पे जो प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर मैथ नेसेसरी होता है, जो लेफ्ट साइड पर प्रोग्राम्स हैं उनमें मैथ नेसेसरी एज एन A लेवल या इंटरमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं होता, बट टेस्ट में जरूर आता है। और टेस्ट में काफी डिफिकल्ट मैथ आती है। दोनों साइड पे सवाल एक आया था जी बहुत मुश्किल है क्या? अब है, मतलब टाइम प्रेशर वगैरह होता है, इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इरफान, यहाँ पे कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? नहीं, बस इतनी सी बात स्टूडेंट्स को समझना जरूरी है कि जो पहला टेस्ट है जो BBA, BS अकाउंटिंग फाइनेंस, BS इकोनॉमिक्स एंड BS सोशल साइंसेज का है, उस टेस्ट के अंदर इंग्लिश का पोर्शन है एंड जनरल मैथ का पोर्शन है। जी बट बिल्कुल। जो दूसरा टेस्ट है इकोनॉमिक्स एंड मैथ का, CS का और मैथमेटिक्स का, उसमें इंग्लिश का पोर्शन है एंड मैथ का पोर्शन है। उस मैथ के पोर्शन में जनरल मैथ भी है एंड A लेवल मैथ या एडवांस्ड मैथ भी है। एट के बाद भी है। हालांकि कुछ बिल्कुल। टॉपिक्स हम अभी आगे डिस्कस करेंगे वो BBA के टेस्ट में भी आते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा उस चीज़ पे फोकस ज़्यादा है, यानी कि इंटरमीडिएट की मैथ फोकस ज़्यादा है। एंड ऑब्वियसली इन 3 प्रोग्राम्स के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास इंटरमीडिएट का मैथ या A लेवल का मैथ होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जी ये बताइए कि अगर हम स्विच करें प्री इंजीनियरिंग से या प्री मेडिकल से तो मसला तो नहीं होगा? जी नहीं, बिल्कुल मसला नहीं होगा। बस अगर आप प्री मेडिकल के हैं तो आपको मैथ की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप BBA या अकाउंटिंग फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस जाते हैं तो आपको टेस्ट के लिए काम करना पड़ेगा, बिकॉज प्री मेडिकल में लोग मैथ इतना पढ़ते नहीं है, तो उसमें उनको मैथ में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। अगर आप A लेवल्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आपने मैथ पढ़ा हुआ है, तो होपफुली आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारे मास्टर्स के प्रोग्राम्स हैं जिसमें MBA और इसके अलावा बहुत सारे MS के प्रोग्राम्स हैं, आप देख सकते हैं। बट सबसे पॉपुलर जो प्रोग्राम्स हैं इस वक्त वो MBA एग्जीक्यूटिव, MS इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, और फिर बाकी कुछ प्रोग्राम्स और भी हैं। MS फाइनेंस भी है जो कि एक पॉपुलर प्रोग्राम है। तो जो लोग प्रोफेशनल्स हैं और जो अपने करियर के साथ जो है वो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए MBA एग्जीक्यूटिव का बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा इवनिंग प्रोग्राम इज अ वेरी गुड ऑप्शन, आप MBA इवनिंग में कर सकते हैं। और बाकी सारे प्रोग्राम्स आपके सामने मौजूद हैं। IBA के मास्टर्स प्रोग्राम्स भी बहुत पॉपुलर हैं और सालाना रेगुलर बेसिस पे कई दफ़ा एडमिशन्स ऑफर होते हैं। और अगर आप एक अपने करियर को बूस्ट लगाना चाहते हैं, आपने बैचलर्स कहीं और से किया हुआ है और साथ साथ मास्टर्स करना चाहते हैं, IBA इज एन एक्सेलेंट ऑप्शन टू डू इट फ्रॉम, to give your career an extra boost that will be really beneficial. ठीक है जी। सो ये मास्टर्स के प्रोग्राम्स हो गए हैं जी। अच्छा जी, एडमिशंस कैलेंडर ये टेंटेटिव है, अभी IBA ने डेट्स कंफर्म नहीं की हैं। जो टेस्ट डेट्स हैं वो एक्सपेक्टेड हैं इंशाल्लाह फेब के सेकेंड वीक में बैचलर्स का टेस्ट एक्सपेक्टेड है। और ये सारी बैचलर्स की प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, BBA अकाउंटिंग फाइनेंस, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये राउंड 1 है। और इसी तरह से राउंड 1 कंप्यूटर साइंस, मैथ और इकोनॉमिक्स एंड मैथ का 3 मार्च को राउंड 1 एक्सपेक्टेड है। अगेन हमने टेंटेटिव का वर्ड यूज किया है बिकॉज अभी तक कंफर्म डेट्स IBA ने पब्लिश नहीं की हैं, सो वी कैन नॉट बी सर्टेन, बट बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस एक्सपीरियंस दिस इज द अप्रॉक्सिमेट आइडिया। तो यहाँ अगर पे आप स्टूडेंट ये क्लियर जी कर बता दें कि दें। राउंड 2 में डिफरेंस क्या है। जी प्लीज गो अहेड, आप कर दीजिए। काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो IBA ने एक स्टूडेंट को जो अभी इस वक्त करंटली अपना इंटरमीडिएट सेकंड ईयर या A लेवल सेकंड ईयर कर रहा है, उसको 2 मौके दिए हैं IBA का टेस्ट क्लियर करने के। या तो वो फरवरी के दौरान राउंड 1 का टेस्ट दे दे, और अगर वो उसको पास कर लेता है और इंटरव्यू पास कर लेता है तो उसका एडमिशन हो जाएगा। अगर वो उस टेस्ट को पास नहीं कर पाता तो उसको एक सेकेंड अटेम्प्ट मिलेगी अपने इंटरमीडिएट एग्जाम्स के बाद जून के एंड में। और अगर वो उस टेस्ट को पास कर लेता है, इंटरव्यू को पास कर लेता है, तो उस वक्त एडमिशन हो जाएगा। सो 2 चांसेस दिए हैं IBA ने आपको
फॉर द सेम सेशन IBA का स्टार्ट होगा सितंबर 2023 में 2024 में सॉरी। तो उस सितंबर सेशन के लिए, उस सितंबर इनटेक के लिए IBA 2 दफा टेस्ट ले रहा है, यानी कि अगर BBA प्रोग्राम में 300 सीट्स हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो 150 एडमिशंस IBA राउंड 1 में दे देगा अप्रॉक्सीमेटली, और बाकी 150 एडमिशंस IBA राउंड 2 में दे देगा। बिल्कुल आपने सही कहा। इनफैक्ट अभी हम डेटा भी लेके आएंगे जिसमें दिखाएंगे कि पिछले 3 सालों में राउंड 1 में कितने एडमिशंस ऑफर हुए हैं, राउंड 2 में कितने एडमिशंस ऑफर हुए हैं। ये सारी अभी हम आपको दिखाएंगे, इंशाल्लाह आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको किस साल कौन सा एडमिशन मिलेगा। 2 सवाल यहाँ पे आए हैं जी, जो यूजफुल अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। एक सवाल तो ये है कि क्या मैंने सैट प्रिपरेशन अगर की है तो वो मेरे लिए राउंड 2 के टेस्ट के लिए काफी होगी, और दूसरा सवाल ये है कि क्या IBA O लेवल ग्रेड्स देखता है या सिर्फ A लेवल ग्रेड्स देखता है। इन तमाम सवालों के जवाब अभी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट अगर आपने SAT की प्रिपरेशन की है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर आपके पास SAT स्कोर है, और अभी आपको बताऊंगा कि कितना सैट स्कोर IBA रिक्वायर करता है, और अगर वो आपका अचीव हो चुका है तो यू माइट एज वेल जस्ट अप्लाई विद दैट। और अगर आपने SAT की प्रिपरेशन की है बट स्कोर अच्छा नहीं आया, खुदा ना खास्ता, या आपने टेस्ट दिया ही नहीं है, तो फिर मैं आपको कहूंगा कि आप IBA के सैम्पल पेपर्स ट्राई करके फिर फैसला करें, बिकॉज IBA का टेस्ट और सैट टेस्ट में काफी फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। अभी आपको हम समझा देंगे क्या फर्क है। अच्छा जी, मास्टर्स प्रोग्राम्स के जो टेस्ट डेट्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली ये हैं जी, अप्रैल और मई और जुलाई। ठीक है जी, अप्रैल के सेकेंड वीक में MBA और MS इकोनॉमिक्स का टेस्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं, और MBA एग्जीक्यूटिव का टेस्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं लास्ट वीक ऑफ मई, और इसके अलावा MS प्रोग्राम्स के हम टेस्ट एक्सपेक्ट करते हैं अराउंड द मिडल ऑफ जुलाई इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे एक सवाल मुझसे 2 दफा पूछा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कस जरूर कीजिएगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं, इंशाल्लाह वी कम बैक टू दिस। और एक सवाल ये है कि जी फील्ड्स तो बता दें कौन सी फील्ड्स लेनी चाहिए IBA में। ऐसे जैसे मैं आपको जिक्र किया पहले कि डिपेंड करता है कि आपका शौक और इंटरेस्ट किस में है। अगर किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में है तो उस पर फोकस कर लीजिए, वरना अगर आप श्योर नहीं है तो BBA इज एन एक्सीलेंट ऑप्शन टू गो फॉर। इनफैक्ट आज भी सबसे पॉपुलर प्रोग्राम IBA का BBA ही है, हालांकि BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस भी काफी पॉपुलर है, बट मेरी पर्सनल राय ये है कि अगर आप सर्टन नहीं है तो आप BBA की तरफ जाएं, और फिर वहां से स्विच कर लीजिए, आप चूज कर लीजिए कि आपको मार्केटिंग मेजर्स करना है कि फाइनेंस मेजर्स करना है। ठीक है जी, जी बिल्कुल। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इरफान आप प्लीज बता दीजिए कि IBA की अंडरग्रेड की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, प्लीज गो अहेड। आप में से जो स्टूडेंट्स A लेवल बैकग्राउंड के हैं, इफ़ यू वांट टू अप्लाई टू IBA, तो BBA प्रोग्राम के लिए आपको 2Bs एंड 1C मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और बाकी सारे प्रोग्राम्स के लिए 1B एंड 2Cs की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। प्लीज कीप इन माइंड कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, एवरेज रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके 2As एंड 1D है, तो वो BBA प्रोग्राम में नहीं अप्लाई कर सकता, बिकॉज 1C की मिनिमम रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहा। अच्छा, अगर आप इंटरमीडिएट बैकग्राउंड से हैं तो ये जो प्रॉब्लम आया था कुछ रिजल्ट्स का इस साल, इन्होंने ये एक मार्जिन दे दिया था, क्योंकि एक दफा A लेवल्स के एग्जाम्स डिस्टर्ब हुए थे। बट आप सही कह रहे हैं कि ये एवरेज रिक्वायरमेंट नहीं है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मिनिमम रिक्वायरमेंट ही रहेगी, इसको एवरेज पे स्विच नहीं करेंगे। यहाँ पे इरफान जो सवाल था कि जी O लेवल्स के ग्रेड्स IBA देखते हैं कि नहीं देखता, तो अगर आपका IBA टेस्ट जो सुपीरियर वाला जो कट ऑफ है, जो आप रीच कर जाते हैं, जहाँ पे इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, अगर आप उसको कट ऑफ को मीट कर जाते हैं तो इट डजंट मैटर कि आपके O लेवल्स में क्या ग्रेड्स हैं, आपके सिर्फ वो A लेवल्स की मिनिमम ग्रेड्स रिक्वायरमेंट देखेंगे। सो अज्यूम कर लीजिए कि O लेवल्स में अच्छे ग्रेड्स नहीं आए, खुदा ना खास्ता से चंद B चंद C आ गए, खुदा ना खास्ता A आए ही नहीं, ओके। बट A लेवल्स में आपने आके मिनिमम रिक्वायरमेंट मीट कर ली, और साथ में आपने टेस्ट बहुत अच्छा किया और हाई कट ऑफ मीट कर लिया, आपका नो क्वेश्चंस आस्क्ड डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। ठीक है जी, ये बेस्ट बात है IBA के एडमिशन प्रोसेस की, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस। दुनिया में ऐसे कम होता है, बट IBA फिर O लेवल्स ग्रेड को कंसिडर नहीं करता। O लेवल्स ग्रेड उस पर कंसिडर होते हैं जब आप हाई कट ऑफ ना मीट करें, बट सेकंड कट ऑफ मीट करें और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, उस पॉइंट पे वो आपका O लेवल ग्रेड्स देखते हैं इंटरव्यू के दौरान। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस जो कि दूसरी जगहों पे नहीं होता। ठीक है जी, इरफान गो अहेड, सॉरी फॉर कटिंग यू आउट, बट प्लीज गो अहेड। नो इशू। सो जो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट बैकग्राउंड के हैं, अगर उनका इंटरमीडिएट में मिनिमम 65% एंड अबव है, तो वो BBA प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर उनका 60% एंड अबव है तो वो BS के सारे प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन आता है, अभी भी किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि भाई अगर मेरी परसेंटेज इससे कम है तो मैं क्या करूँ।
सो अगर आपने फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया हुआ है और आपकी फर्स्ट ईयर में 59% है इंटरमीडिएट के अंदर, तो यू कैन स्टिल अप्लाई बिकॉज आईबीए फर्स्ट ईयर के मार्क्स को नहीं देखता, सेकंड ईयर की ओवरऑल परसेंटेज को देखता है। जी अगर आपने जी। सेकंड ईयर के एग्जाम्स दे दिए और सेकंड ईयर में आपका 60% से कम है, तो फिर अनफॉर्चुनेटली आप आईबीए के किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास फिर एक ही ऑप्शन है कि आप अपने पेपर्स की इंप्रूवमेंट दें और अपनी एलिजिबिलिटी बढ़ाएं और फिर आईबीए अप्लाई करें, विच नॉट अ लॉट ऑफ पीपल डू। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा। तो अगर परसेंटेज खुदा ना खास्ता आपकी नहीं है तो आपके पास ऑल्टरनेट ऑप्शन यही है कि अपनी परसेंटेज को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, या अपने ए लेवल्स के अगर कुछ ग्रेड्स खुदा ना खास्ता पूरे नहीं हैं तो उनको आप जरा फुलफिल करें। बाय द वे, गैप ईयर अगर बीच में आ जाता है अनफॉर्चुनेटली तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बहुत लोग गैप ईयर लेते हैं और उसमें वो अपने आप को रीवैल्यूएट करते हैं, कुछ स्किल्स डेवलप कर लेते हैं। तो यू कैन डू दैट, इसमें कोई मसले की बात नहीं है और परफेक्टली फाइन है। अगर गैप या खुदा न खास्ता आ गया है, जस्ट यूज दैट टू इम्प्रूव योरसेल्फ एंड मेक योरसेल्फ अ बेटर कैंडिडेट। ये एक लॉन्ग टर्म डिसीजन है, ये शॉर्ट टर्म चीजें नहीं है। तो अगर आपको एक साल इन्वेस्ट करना पड़ता है तो टेक अ लुक एट इट एज इफ you are improving your own self, you are investing in your own personality, so it's perfectly fine to do that. ठीक है जी। इनफैक्ट आई वुड से कि रेगुलर बेसिस पर हमारे पास 20 to 30% स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो सेकंड ईयर ए लेवल या सेकंड ईयर इंटरमीडिएट कर चुके हैं एंड देन दे प्रिपेयर फॉर द आईबीए टेस्ट। सो जैसे कि सलमान भाई ने मेंशन किया, अगर गैप ईयर है दैट इज एब्सोल्युटली नॉट एन इशू। इनफैक्ट यू विल प्रोबेबली हैव अ बेटर चांस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द आईबीए टेस्ट बिकॉज आपका फोकस सिर्फ उसी के ऊपर होगा। एंड अगर आप साथ साथ अपनी इंग्लिश एंड मैथ स्किल्स पे वर्क करते हैं तो इंशाल्लाह होपफुली या तो आप टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर ले आएंगे और इंटरव्यू आपका एग्जाम हो जाएगा। अगर नहीं भी होता और इंटरव्यू कॉल आती भी है तो इंशाल्लाह आप अपनी अगर स्पीकिंग स्किल साथ साथ इंप्रूव करते रहें तो दी इंटरव्यू शुड नॉट बी एन इशू। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा जी, ये रिक्वायरमेंट्स हो गई जी। ये कट ऑफ का सवाल पूछा जा रहा है कि जी कट ऑफ्स क्या होंगे, और फी स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है कि जी आईबी का फी स्ट्रक्चर क्या है। फी स्ट्रक्चर के बारे में हम टुवर्ड्स लेटर आते हैं। टेस्ट प्रिपरेशन के बारे में गाइड कर दें, अभी वहां पे आ जाते हैं। और व्हाट इज द हायर कट ऑफ, ये मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। और अब हम आते हैं जी आईबीए के ग्रेजुएट प्रोग्राम्स रिक्वायरमेंट। तो अगर आप एमबीए या एमएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है आईबी की तरफ से। यानी कि आपका 12 इयर्स अप टिल इंटरमीडिएट या ए लेवल्स एंड देन 4 इयर्स ऑफ बैचलर्स, तो 16 साल वो हो गए। और फिर अब आप जो है वो आईबी के लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए फॉर एमबीए या एमएस प्रोग्राम। आपका मिनिमम, अगर तो जो बैचलर्स किया हुआ है उसमें आपका मिनिमम अगर परसेंटेज वाइज है तो 60% होना चाहिए। अगर जीपीए वाला है तो 2.5 मिनिमम जीपीए होना चाहिए। और उसके अलावा आपका, अगर आप आईबीए का टेस्ट नहीं देना चाहते, आईबी का टेस्ट दे सकते हैं। अगर नहीं देना चाहते तो जीमैट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। आपका स्कोर 600 मिनिमम आउट ऑफ 800 होना चाहिए, जिसमें इंग्लिश मैथ का कट ऑफ आईबी ने नहीं दिया हुआ, और उस वजह से आपका बस टोटल 600 आ जाए कम से कम तो काफी है। दे डोंट केयर कि आपका मैथ ज्यादा अच्छा गया या आपका इंग्लिश ज्यादा अच्छा गया। सो रॉ स्कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है जीमैट का स्कोर। तो 600 आ जाए कम से कम, दैट्स वेरी गुड। जीआरई ऑन द अदर हैंड अगर आप देते हैं तो वो कहते हैं जी जीआरई के अंदर ब्रेकअप यूं होना चाहिए कि कम से कम मैथ में 160 होना चाहिए या वर्बल में 150 होना चाहिए। जीमैट जीआरई दो डिफरेंट टेस्ट हैं, दोनों इंटरनेशनल टेस्ट हैं। आप यूनिवर्सिटीज अब्रॉड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं थ्रू जीमैट जीआरई। सो आई भी कहता है कि जी आप ये टेस्ट भी दे सकते हैं या तो अपना टेस्ट ले लें। तो ज्यादातर लोग जो है वो आईबी का अपना टेस्ट कर लेते हैं बिकॉज इट्स चीपर। आप वहीं पे लोकली बैठ के ट्राई कर लिया, दैट्स फाइन। अच्छा जी, अगर आपका एमबीए एग्जीक्यूटिव में प्रोग्राम में अप्लाई करने का इरादा है तो 3 साल का कम से कम वो एक्सपीरियंस चाहिए आपको, जिसके बगैर आपको एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में एडमिशन नहीं मिलता। ठीक है जी, ये हमारी सिचुएशन हो गई है जनाब। अच्छा जी, चलें इस पे इरफान, आज एआई के बारे में बहुत सवाल आ रहे हैं जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में काफी सवाल आ रहे हैं लोगों को। बहुत जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाने का बन रहा है। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, ग्रेट। उस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इरफान, आई वांट यू टू टॉक अबाउट द एप्टीट्यूड टेस्ट। ये प्लीज बताइए जी कि एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है और किस तरह से इसका प्रोसेस होता है। So IBA, once you fill out the IBA form, step number 1 ये है कि आप IBA का एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं। IBA का जब आप एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं उसका टेस्ट फॉर्मेट हम आगे डिस्कस करेंगे। तो IBA पहले से उसके कट ऑफ स्कोर्स अनाउंस नहीं करता, बल्कि IBA आपके टेस्ट को चेक करता है, उन टेस्ट को ग्रेड करने के बाद उन स्कोर्स को अरेंज करता है डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट, और फिर IBA डिसाइड करता है कि जी ये कट ऑफ्स होने चाहिए, और वो कट ऑफ्स based होते हैं on the number of seats that IBA has for each program.
अच्छा, अब ये जो कट ऑफ्स हैं इसमें आईबीए दो तरह के कट ऑफ्स अनाउंस करता है। एक हायर कट ऑफ होता है जो डायरेक्ट एडमिशंस वालों के लिए होता है। एक स्लाइटली लोअर कट ऑफ होता है जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए होता है हु हैव क्लियर्ड द टेस्ट बट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। सो जो स्टूडेंट ये दोनों कट ऑफ्स नहीं मीट कर रहा वो तो ऑब्वियसली आईबीए का टेस्ट अनफॉर्चुनेटली नहीं पास कर पाया। लेकिन जो स्टूडेंट लोअर कट ऑफ मीट कर रहा है उसका टेस्ट पास हो गया और आईबीए उसको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। जो बिल्कुल। स्टूडेंट हाई कट ऑफ मीट कर गया आईबीए उसको डायरेक्ट एडमिशन दे देगा। जैसे कि सलमान भाई ने बताया, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, उसका कोई इंटरव्यू नहीं होगा। बस ही हैज टू मेक श्योर कि वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। यहाँ पे एक छोटी सी बात बता दूं कि ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स ये देखा गया है कि आईबीए ने अपने इंटरव्यू का रिजेक्शन रेट काफी बढ़ाया है। सो आईबीए अब अपने इंटरव्यू में 30 to 40%, इन सम केसेस इवन 50% स्टूडेंट्स को इंटरव्यू में रिजेक्ट करता है। दैट इज हम्म, वाई दो students who clear the test but have been called for an interview have to make sure कि वो इंटरव्यू की बहुत थॉरो प्रेपरेशन करें, जो कि इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम के अंदर करवाएंगे। हम्म, बिल्कुल। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आप अगर टेस्ट स्कोर अच्छा ले आते हैं तो आपको बगैर इंटरव्यू के एडमिशन मिल जाता है, विच इज़ द बेस्ट थिंग। और उसमें दे डोंट इवन माइंड इफ यू डोंट हैव वेरी गुड ग्रेड्स इन योर ओ लेवल्स और योर मैट्रिक, एज लॉन्ग एज आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाती है। दिस इज आई थिंक अ ग्रेट थिंग दैट आईबीए हैज कि आप कि टेस्ट परफॉर्मेंस बहुत सॉलिड हो जाए तो यू गेट एन अपॉर्चुनिटी दैट नॉट अ लॉट ऑफ अदर प्लेसेस माइट गिव यू। सो द टेस्ट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा जी। और एंड द अदर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ये जो डायरेक्ट एडमिशन है और जो इंटरव्यू वाला जो स्कोर है इसमें कोई ज्यादा फर्क भी नहीं होता है, यानी कि 2 या 3 क्वेश्चंस के मार्जिन से आप जो है ना वो इंटरव्यू वाले उस पर कट ऑफ पे पहुंच से बढ़ के आप वहां पहुंच जाते हैं अपने डायरेक्ट एडमिशन वाले उसके ऊपर कट ऑफ के ऊपर। सो फॉर एग्जांपल अभी आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर ईयर में अगर कट ऑफ था फॉर इंटरव्यूज लेट्स से 180 पॉइंट्स, तो जो डायरेक्ट एडमिशन का कट ऑफ था वो 190 था या 192 था। सो दैट्स अ मार्जिन ऑफ 3 क्वेश्चंस ओनली, राइट? सो इंसान तैयारी कर ले तो अगर आपने बगैर तैयारी के अगर आप इंटरव्यू वाला कट ऑफ मीट करने की कैपेसिटी में थे तो अगर आप थोड़ी सी भी तैयारी कर लेंगे तो आप पहुंच जाएंगे टुवर्ड्स द हायर कट ऑफ जहां पर डायरेक्ट बगैर इंटरव्यू के एडमिशन हो जाएगा। ठीक है जी। सो सामिया पूछ रही है, सर इज दिस बीइंग रिकॉर्डेड, कैन वी वॉच इट लेटर? फेसबुक पे लाइव जा रहा है तो यस इट विल बी अवेलेबल इंशाल्लाह लेटर एज वेल। सो दैट इट्स गोइंग टू बी देयर, और अगर आप कहेंगे तो हम आपको इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा जी, तो ये तो इरफान ने बता दिया टेस्ट के बारे में। अच्छा जी, आईबीए का जो एडमिशन टेस्ट है इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? पहली बात तो ये कि इट्स एन एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट। आपको हर सवाल के मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस मिलते हैं, आपने ABCDE मार्क करना होता है। 2 सेक्शंस होते हैं जी, मैथ एंड वर्बल। सेक्शन मैथ्स का जो है उसकी टाइमिंग अलग होती है, वर्बल की टाइमिंग अलग होती है। कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते, विच मीन्स कि आपको सारी कैलकुलेशन बगैर कैलकुलेटर के मेंटली या विद अ पीस ऑफ पेपर एंड पेन करना होता है या पेंसिल करना होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हमारे ज़माने में नेगेटिव मार्किंग होती थी, अगर आप अटेम्प्ट करें क्वेश्चन और गलत कर लें तो मार्क्स कट जाते थे। पिछले चंद सालों से आईबीए नेगेटिव मार्किंग खत्म कर दी है, विच मीन्स के अब आपके पास सवाल अगर आपको नहीं भी आता तो आप एक रैंडम गैस कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर 10 सवाल हैं जो आपको नहीं आते तो आपने रैंडम गैस कर लिया, उसमें से आपके 2 3 4 कुछ भी ठीक हो गए तो आपको उसके पॉइंट्स मिल जाएंगे। आईबीए डज नॉट लुक एट द वर्किंग, देयर आर नो मार्क्स फॉर वर्किंग। सो इट डजंट मैटर कि आपने कुछ भी वर्किंग ना की हो, आपने सारे क्वेश्चंस मेंटली सॉल्व कर लिए, फाइन, दैट्स परफेक्टली फाइन। इरफान, वर्बल और क्वांट के बारे में बताना चाहेंगे कि जी क्या ब्रेकअप है इनका? हाँ, चूंकि आईबीए अब सैम्पल टेस्ट स्टूडेंट्स को नहीं प्रोवाइड करता तो ये फिक्स नहीं है कि आईबीए कितने क्वेश्चंस देगा। बट जब आप आईबीए के पास पेपर्स को और रीसेंट टेस्ट को एग्जामिन करते हैं तो यू कैन सी कि जी एक प्रिटी रेपिटेटिव पैटर्न है। और वो रेपिटेटिव पैटर्न ये है कि इंग्लिश में यूजुअली 45 to 50 क्वेश्चंस होते हैं, मोस्टली 45 क्वेश्चंस होते हैं। एंड सिमिलरली मैथ सेक्शन में भी मोस्टली 45 क्वेश्चंस होते हैं। यूजुअली जी, इंग्लिश क्वेश्चंस 45 में सर यू को बड़ा गेट weird है। I don't know why they've stuck at 45 या 40 कर लेते या 50 कर लेते, but for some odd reason they like 45, so they've been at 45 for quite some time. I don't know why. I'd like to know what the logic is though. In any case, go ahead.
So English में usually you have about 1 minute per question, but once again वो depend करता है कि किस तरह के सवाल हैं. यानी कि अगर टेस्ट में vocabulary के सवाल ज्यादा आ जाएंगे तो probably कम टाइम मिलेगा, लेकिन अगर टेस्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सवाल ज्यादा आ जाएंगे तो probably ज्यादा टाइम मिलेगा. और So आजकल generally पोइट्री भी आप आ ध्यान रही में है, रख आपको सकते हैं. मालूम है जी, आपने पोइट्री पढ़नी है, आपने पोइट्री को वैल्यूएट करना है जी, वर्ड्सवर्थ की पोइट्री आ गई थी, तो इंटरेस्टिंग पोइट्री आना शुरू हो गई है अभी बिजनेस कॉलेज के टेस्ट में, विच आई फाइंड वेरी वियर्ड, बट खैर शौक है जी आईबीए जी. सोशल साइंसेज जब से ऐड हुआ है तब से पोइट्री आना शुरू हो गई है, तो ये सोशल साइंसेज की वजह से हुआ है, आई गेस, आई एम अज्यूमिंग दैट. खैर इन एनी केस, अच्छा जी. सो ये आपने बताने कि जी ये हमारे मेन एरियाज हैं इंग्लिश के और मैथ के, राइट. सो इंग्लिश में वोकैबुलरी है, सेंटेंस कंप्लीशंस है, सेंटेंस करेक्शंस हैं, क्लोज्ड पैसेजेस हैं. क्लोज विद जी है, ये स्पेलिंग एरर नहीं है, ये क्लोज विद जी है. सर्टेन काइंड ऑफ पैसेज दैट अकर्स इन द आईबीए टेस्ट. रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मेमोरी बेस्ड तो खैर अब नहीं आता, नॉन मेमोरी बेस्ड ही आता है, डायरेक्टली पैसेज सामने मौजूद होता है, आपने उसको पढ़ के उसके सवालों के जवाब देने होते हैं. मेमोरी बेस्ड तो खैर पहले आया करता था, पुराने जमाने में, हमारे जमाने की बात है जी. और तो नॉन मेमोरी बेस्ड डायरेक्ट रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आते हैं, पोएट्री, एनालॉजीज एंड क्रिटिकल रीजनिंग. क्रिटिकल रीजनिंग ज्यादातर मास्टर्स के टेस्ट में आता है, बैचलर्स के टेस्ट में क्रिटिकल रीजनिंग नजर नहीं आता, बट क्योंकि अब सैट में आ रहा है तो हो सकता है भी उसके पास अपने पास शामिल करना शुरू कर दे क्रिटिकल रीजनिंग को भी. मैथ्स, इरफान, व्हाई डोंट यू टेल देम अबाउट मैथ्स? मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देयर इज नो कैलकुलेटर इन द टेस्ट. तो जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जी सैट से सिमिलर है, पहला डिफरेंस तो यही है कि सैट में कैलकुलेटर अलाउड है, आईबीए में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है. आईबीए के बिल्कुल. जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें मेंटल मैथ का या क्विक कैलकुलेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इसी वजह से स्टूडेंट्स को कुछ बेसिक शॉर्टकट्स और कुछ बेसिक कैलकुलेशंस याद होनी चाहिए. और उसके अलावा टेस्ट में मेंटल मैथ के और सीरीज के थोड़े बहुत सवाल आते हैं, बहुत ही मिनिमल. अरिथमेटिक के सवाल आते हैं, अलजेब्रा हो, एवरेजेस हो गया, परसेंटेजेस हो गया, रेशियोज हो गया. प्रॉब्लम सॉल्विंग के सवाल आते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग इज प्रॉबेबली वन ऑफ द बिगेस्ट एरियाज इन दी आईबीए टेस्ट. इसको जहन में रखें, इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और इसके सवाल कुछ केसेस में लेंदी भी होते हैं, कुछ केसेस में लॉजिक वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं जो काफ़ी चैलेंजिंग भी हो सकते हैं. अलजेब्रा बिल्कुल. आईबीए के टेस्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है. उसमें अलजेब्रा चूंकि एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ मैथ है तो उसको काफ़ी डिटेल में कवर करना आपको बेहतर पसंद भी रहेगा. बहुत है, कुछ ज्यादा ही शौक है आपको अलजेब्रा सॉल्व करने का. आपका फेवरेट एरिया है अलजेब्रा. जी जी जी, बताइए बताइए अलजेब्रा के बारे में. उसके बाद ज्योमेट्री है. ज्योमेट्री भी आईबीए के टेस्ट में आता है. इसके अंदर 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है. और फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आईबीए के टेस्ट में सिर्फ जनरल मैथ नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जिसे हम एडवांस्ड मैथ की कैटेगरी में यूजुअली शामिल करते हैं. ये वो टॉपिक्स हैं जो स्टूडेंट्स अगर ओ लेवल एड मैथ या ए लेवल मैथ ना पढ़ें तो जनरली इन टॉपिक्स को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते. तो हम्म. मतलब हुआ कि जिन स्टूडेंट्स का प्री मेडिकल बैकग्राउंड है या कॉमर्स बैकग्राउंड है वो शायद इन टॉपिक्स के साथ बहुत फेमिलियर ना हो, बट दैट्स नॉट अ मेजर कंसर्न, बिकॉज जब आप आईबीए की प्रिपरेशन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये सारे एरियाज बहुत डिटेल में कवर करवाए जाएंगे. क्विकली अच्छा, अगर इंटरेस्टिंग बात कर ये दूं. है इरफान, क्या जब हमने इवैल्यूएट किया, मैंने और आपने बैठ के और नुमान ने, हम सबने जब ये टेस्ट के जो हर साल जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी रिक्रिएशंस भी देखते हैं, और पास पेपर्स जो आईबीए पब्लिश करता है उनको भी स्टडी करते हैं. अनफॉर्चुनेटली आईबीए किसी साल कोई टॉपिक ज्यादा टेस्ट कर लेता है, किसी साल कोई टॉपिक ज्यादा टेस्ट कर लेता है, कंसिस्टेंसी हमें नजर नहीं आती. यानी कि अगर आप इंटरनेशनल टेस्ट की बात करते हैं, सैट हो गया, जीमैट हो गया, जीआरई हो गया. सो जीमैट फॉर एग्जांपल, आई नो कि यार अगर 37 क्वेश्चंस हैं मैथ के, अब तो खैर फॉर्मेट और चेंज हो गया, बट 37 क्वेश्चंस हैं मैथ के, तो उसमें फिर ज्योमेट्री जो है वो 6 सवाल होंगे, 5 या 6 सवाल होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे. बट आईबी के टेस्ट में किसी साल ज्योमेट्री भर के आ जाएगा, किसी साल ज्योमेट्री गायब हो जाएगा. तो आपको याद होगा एक साल ऐसा था जिसमें मेट्रिसेस भर के बहुत आ गए थे. याद होगा कोई पर्टिकुलर एमबीए का टेस्ट था जिसमें उस साल पता नहीं क्या हुआ, उस साल मेट्रिसेस आना शुरू हो गया, हर सवाल मेट्रिसेस. एग्जैक्टली, मतलब वियर्ड. अनफॉर्चुनेटली ये वेरिएशन बहुत आती है क्योंकि उनका, आई बिलीव उनका जो टेस्टिंग डिपार्टमेंट है उसमें जो लोग जिम्मेदार हैं टेस्ट बनाने के, वो कंसिस्टेंटली सेम नहीं रहते, वो हर साल चेंज हो जाते हैं. तो जब कोई नया शख्स आता है तो अपने हिसाब से वो कोई वेरिएशन लेके आ जाता है. तो एक साल ऐसा था इरफान, आपको याद होगा, इसमें परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस ज्यादा आया था और प्रोबेबिलिटी बहुत आ गया था. तो आई एम अज्यूमिंग जिस साल में टेस्ट बनाया था उनको शौक होगा परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस का, स्टैटिस्टिक्स का, तो उन्होंने उस साल भर दिया. कुछ सालों में हम देखते हैं फंक्शंस बहुत ज्यादा आ जाता है. सो इट दिस वेरीज, एंड दैट्स द रीजन व्हाई वन कैन नॉट रियली प्रिडिक्ट. सो कई दफा लोग जब सवाल पूछते हैं कि सर इस साल क्या आएगा,
तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह को मालूम क्या आएगा, बट हम पिछले सालों का ट्रेंड देख के बता सकते हैं कि यार पिछले 4-5 सालों में ज्यादातर चीजें क्या आई थी, उसके हिसाब से वी कैन ट्राई टू प्रेडिक्ट कि यार इस साल क्या आएगा। सो ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, बट सम टॉपिक्स आर ऑब्वियसली मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स। हम देख सकते हैं कि अलजेब्रा डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री भी यूजफुल है, परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस प्रोबेबिलिटी भी काफी रेगुलरली टेस्ट होता है, फंक्शंस तो बहुत रेगुलरली टेस्ट होता है। और एक पर्टिकुलर साल था जिसमें इरफान आपको याद होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस बहुत ज्यादा आया था, जिसमें बहुत आई थिंक ज्यादा आया 5-6 था। सवाल आ गया था। और काफी रेगुलरली आते थे, लेकिन अब रिसेंट पेपर्स में देखते हैं कि जी इसके सवाल बहुत मिनिमल आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और जिस साल आया था उस दिन उस साल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सवाल भी बहुत लंबे चौड़े डिफिकल्ट लेंथी लेंथी सवाल आ गए थे, व्हिच वाज रिडिकुलस बिकॉज़ आई मीन नोबडी हैज टाइम टू डू दोस क्वेश्चंस इन, मतलब आप एक सवाल में 5 मिनट नहीं लगा सकते ना, आप इतना टाइम तो आपके पास किसी के पास नहीं होता, राइट? दैट्स अ वेरी हाई प्राइस टू पे फॉर अ क्वेश्चन। सो अनफॉर्चुनेटली वो सवाल डालने का फायदा ही नहीं होता। अब हमारी एडवाइस आईबीए को भी यही है कि यार एक बैलेंस टेस्ट बनाएं, ख्याल रखें कि जी कितने क्वेश्चंस हैं, एक राइट अमाउंट ऑफ चैलेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जी वो ना सारे लोग फिर तुक्के मार रहे हो बैठ के, तो फिर फायदा ही नहीं, फिर टेस्ट का मजा ही खत्म हो जाता है। अच्छा जी चलें, अब हमारे ये कट ऑफ्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जी। आईबीए के जो कट ऑफ का रूल है बड़ा सिंपल सा है। आपके पास 3 कट ऑफ्स मीट करने होते हैं आपने, पहला मैथ का, और दूसरा इंग्लिश का, और फिर तीसरा टोटल कट ऑफ। टोटल कट ऑफ 2 होते हैं, एक लोअर कट ऑफ जिसको अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपका इंटरव्यू में नाम आ जाता है, आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, और एक हायर कट ऑफ जो कि लोअर कट ऑफ से तकरीबन 2 से 3 सवाल का फर्क होता है, यानी कि 8 से 12 मार्क्स का फर्क होता है। अगर आपने वो मीट कर लिया तो आपको डायरेक्ट एडमिशन ऑफर हो जाता है। देन यू जस्ट नीड टू मेक श्योर दैट यू फुलफिल द ग्रेड रिक्वायरमेंट। बाय द वे याद रखें हर सवाल के 4 मार्क्स हैं। सो व्हेन द कट ऑफ इज 92, दैट मींस के 23 क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए, राइट? 23 टाइम्स 4 इज 92। सो अगर आपके 23 क्वेश्चंस ठीक होंगे तो आप 92 का कट ऑफ मीट कर लेंगे इन मैथ, 92 इन वर्बल। बाय द वे ये कट ऑफ हर साल वेरी करता है, ये हम आपको जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 2023 बीबीए राउंड 1 के कट ऑफ है। सो क्योंकि अभी हम राउंड 1 की तैयारी करने जा रहे हैं तो लास्ट ईयर राउंड 1 से कंपेयर कर रहे हैं, तो राउंड 1 लास्ट ईयर में कट ऑफ जो था वो 92 मैथ में था, 92 वर्बल में था। 212 अगर रीच किया तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाती थी, अगर उससे कम है तो सॉरी, ट्राई अगेन। ठीक है जी, 212 मीट किया लास्ट ईयर राउंड 1 में तो इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई, और 220 मीट कर लिया तो इंटरव्यू एग्जाम। अब आप सिर्फ रिजल्ट सबमिट करें, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। अगर रिजल्ट फुल आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। सो एज आई टोल्ड यू इट्स अ वंडरफुल प्रोसेस, राइट? यू नो वेरी क्लियरली हो गया नहीं हो गया, बड़ा आसान है, इट डजंट टेक दैट लॉन्ग। ओके जी। बिल्कुल जी। इरफान ये जो बॉटम पे जो सिनेरियोज आपने लिखे हुए हैं बताना पसंद करेंगे इनके बारे में? मैं बिल्कुल बता देता हूँ, बट एक छोटी सी चीज़ आपकी आपकी बातों में ऐड कर दूं कि जो स्टूडेंट 216 स्कोर करता है उसको जी आईबीए इंटरव्यू आ रहा है, लेकिन जो स्टूडेंट एक सवाल और सही कर दे, 220 स्कोर कर दे, उसको आईबीए डायरेक्ट एडमिशन दे देगा। सो इंटरव्यू और डायरेक्ट एडमिशन के दरमियान, जैसे कि सलमान भाई ने बताया, सिर्फ 8 मार्क्स का, यानी कि सिर्फ 2 सवालों का डिफरेंस है। इसीलिए बिल्कुल हम रेगुलर बेसिस पे स्टूडेंट्स को कहते हैं, आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ, कि प्रिपरेशन दिल लगा के करें एंड कोशिश करें कि अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करें ताकि आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाए। और आईबीए बहुत सारे स्टूडेंट्स को डायरेक्ट एडमिशन देता है। दैट इस पे हम अग्री या डिसएग्री कर सकते हैं कि पॉलिसी सही है या नहीं, बट जब तक है उसका आप एडवांटेज उठाएं कि आप डायरेक्ट एडमिशन को टारगेट करें ताकि आपको इंटरव्यू की हैसल से बचा लिया जाए। अच्छा, अब नीचे जो चीज़ एक्सप्लेन की गई है वहाँ पे सिंपली एक छोटी सी बात समझाने की कोशिश की गई है कि आईबीए के अगर आप मैथ, इंग्लिश एंड टोटल कट ऑफ्स को देखें, तो मैथ और इंग्लिश के कट ऑफ्स को अगर आप ऐड करते हैं तो वो टोटल कट ऑफ के बराबर नहीं होता। आईबीए हमेशा ये करता है कि आईबीए मैथ और इंग्लिश के कट ऑफ्स को ऐड करने के बाद उसमें क्वेश्चन ऐड करता है और फिर टोटल कट ऑफ अनाउंस करता है। तो ये बिल्कुल बात समझना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी हमारी मैथ बहुत अच्छी है और हम मैथ को मैक्सिमाइज कर लेंगे। अगर वो मैथ को मैक्सिमाइज कर लेते हैं, स्टूडेंट ए का केस देख लें कि जी उसने मैथ में फुल मार्क्स ले लिए, 45 क्वेश्चन से सारे सही कर लिए, उसका स्कोर आ गया मैथ में 180, लेकिन इंग्लिश में हम्म उसका स्कोर आया 88, तो उसका हम्म टोटल बहुत हाई है, 268, लेकिन इंग्लिश में चूंकि उसका स्कोर 88 है तो वो इंग्लिश के कट ऑफ में फेल हो गया और एडमिशन लेने के लिए तीनों कट ऑफ पास करना जरूरी है। हम्म सिमिलरली एक दूसरा स्टूडेंट है जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, उसने इंग्लिश के स्कोर को मैक्सिमाइज कर लिया लेकिन मैथ में उसका स्कोर 88 आया, तो वो भी टोटल कट ऑफ नहीं, टोटल कट ऑफ तो वो पास कर जाएगा, इंग्लिश का कट ऑफ भी पास कर जाएगा, बट चूंकि वो मैथ का कट ऑफ पास नहीं कर रहा तो वो भी फेल हो जाएगा।
यानी कि जो पहली दो एग्जांपल्स हैं वो ये शो कर रही हैं कि अगर आप सिर्फ एक एरिया में स्ट्रांग है और दूसरे एरिया में स्ट्रांग नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर द टेस्ट। जो तीसरी एग्जांपल है स्टूडेंट सी वाली, वो ये शो कर रही है कि अगर कोई स्टूडेंट दोनों कट ऑफ्स को जस्ट पास करता है, यानी कि वो स्टूडेंट मैथ में 100 स्कोर लेके आता है मैथ के कट ऑफ से थोड़ा ऊपर, और इंग्लिश का स्कोर 100 लेके आता है इंग्लिश के कट ऑफ से थोड़ा ऊपर, तो उसका टोटल बनेगा 200, वो टोटल कट ऑफ में फेल हो जाएगा। सो आपने ये बात जहन में रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात कि सिर्फ एक सेक्शन में स्ट्रांग होके आपका टेस्ट पास नहीं होगा, दोनों सेक्शंस में अच्छा करना है। दूसरी बात यह कि अगर दोनों सेक्शंस को आप जस्ट पास करेंगे तो आप टोटल कट ऑफ को मीट नहीं कर पाएंगे। ये बात मेजॉरिटी स्टूडेंट्स नहीं समझते। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो 200 स्कोर है, इस स्कोर पे इस साल आपका किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन नहीं हो रहा था। ये बीबीए का कट ऑफ तो हाईएस्ट होता है, बाकी का प्रोग्राम्स के कट ऑफ तो इससे लोअर होते हैं, लेकिन 200 के स्कोर पे किसी भी प्रोग्राम में आपका एडमिशन नहीं मीट हो रहा है। राइट, एग्जैक्टली। मैं स्टूडेंट्स से यही कहता हूँ कि भाई अगर आपने अपना जो एडमिशन है उसके चांसेस मैक्सिमाइज करने हैं, तो out of 45 questions in the math and the 45 questions in the verbal, your target should be around 35 कम से कम, that way you can feel comfortable कि यार इंशाल्लाह मेरा एडमिशन हो जाएगा। बट 30 तो कहीं नहीं गया, कम से कम 30 in each section तो होना ही चाहिए। अच्छा जी, so that's a well explained idea, इरफान, thank you for doing that। SAT कटऑफ्स के बारे में बात कर लेते हैं जी। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं भाइयों और बहनों के IBA के BBA और BS अकाउंटिंग फाइनेंस प्रोग्राम के लिए मैथ का मिनिमम कट ऑफ 600 SAT में, और वर्बल का भी 600, और टोटल 1270। ओके, ये होना जरूरी है टू बी अलाउड एग्जाम्पशन फ्रॉम द IBA टेस्ट। अगर ये स्कोर्स आपके पास मौजूद हैं तो आप IBA को डायरेक्टली कह सकते हैं कि जी ये स्कोर्स ले लें, मैं टेस्ट नहीं देना चाहता, मुझे डायरेक्टली बता दीजिए कि मेरा एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ। तो IBA कहेगा ठीक है जी, आपको टेस्ट में बैठने की जरूरत नहीं है, अब आप इंतजार कीजिए, जब हम अपना टेस्ट का रिजल्ट पब्लिश करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि जी आपको हम इंटरव्यू के लिए कॉल कर रहे हैं या हम आपको डायरेक्ट एडमिशन ऑफर कर रहे हैं। बाय द वे 1270 पे डायरेक्ट एडमिशन कभी ऑफर नहीं हुआ IBA के अंदर। आपको भी मैं बता देता हूँ कि पिछले चंद सालों में कट ऑफ्स क्या आ रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार, हम करीब पहुंच रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट के। BS सोशल साइंसेस, BS इकोनॉमिक्स में के लिए कट ऑफ जो है वो 600 आउट ऑफ 800 मैथ, 600 आउट ऑफ 800 वर्बल, एंड टोटल 1200 आउट ऑफ 1600। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं अगेन। और कंप्यूटर साइंस और मैथ और इको एंड मैथ की रिक्वायरमेंट्स भी सामने मौजूद है। मैथ में उनका स्कोर वेरी करता है, 670 एंड 640, वर्बल 600 है, टोटल मिनिमम रिक्वायरमेंट 1270 एंड 1240 है। जी इरफान, कुछ ऐड करना चाहेंगे यहाँ पे आप? नहीं, दैट्स इट। इनफैक्ट बस ये छोटी सी बात जो आपने बताई उसी को रीअफर्म कर देता हूँ कि मेजॉरिटी केसेस में इन स्कोर्स पे आपका डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। डायरेक्ट एडमिशन का यूजुअली थ्रेशोल्ड सैट के बेसिस पे फिक्स नहीं होता, बट यूजुअल अगर आप एक बेंचमार्क चाह रहे हैं तो 1400 और 1450 के दरमियान होता है, एंड दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी हाई स्कोर। सो और ये बात भी जहन में रखें, आगे जाके सलमान भाई डेटा शो करेंगे, बट स्क्रीन पे डेटा आ गया। हाँ या आपने जिक्र किया और ये डेटा आ चुका है जी। मैं थोड़ा सा लीक ये करने जा रहा था कि IBS उन स्टूडेंट्स को जो सैट की बेसिस पे टेस्ट एग्जाम्शन लेके इंटरव्यू के लिए आते हैं, IBA गिव्स देम अ टफ टाइम इन द इंटरव्यू। यूजुअली सैट की बेसिस पे इंटरव्यू रिजेक्शन ज्यादा होती है बनिस्बत IBA के टेस्ट की, ये एक स्टैटिस्टिक है। तो अगर आप यार लोगों को डरा क्यों रहे हैं यार आप? ठीक है, अब आप कहें जी इंटरव्यू होगा, बस खत्म होगी बात, बेकार में आप लोगों को डरा रहे हैं कि जी आपने सैट के थ्रू जा रहे हैं, तो आप ठीक है जी कॉन्फिडेंस दें, बोले इंशाल्लाह आप क्लियर करेंगे। अच्छा जी चलें, लेट्स लुक एट दी स्कोर्स, कट ऑफ स्कोर्स। ये राउंड 1 के कट ऑफ्स हैं 2023 के, यानी इस साल के। सो राउंड 1 में जो कट ऑफ्स थे वो मैथ, अच्छा ये BBA कट ऑफ्स हैं बाय द वे, और BBA BS अकाउंटिंग। अच्छा आप देख सकते हैं कि मैथ और इंग्लिश का कट ऑफ जो था वो 92 ईच था। सी सारे प्रोग्राम्स के लिए था, BBA अकाउंटिंग फाइनेंस, BS इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेस, इसका कट ऑफ था राउंड 1 का। और इसमें आप टोटल कट ऑफ अगर 220 आपने मीट कर लिया तो आपका इंटरव्यू एग्जाम हो जाता था, अगर 212 मीट किया तो आपको इंटरव्यू कॉल आ रही थी। तो आपने देखा सिर्फ 2 सवालों का फर्क था BBA में बगैर इंटरव्यू एडमिशन में और इंटरव्यू कॉल में। सो और इंटरव्यू में रिजेक्शन रेट कितना है इरफान, बताइएगा जरा, रिमाइंड कीजिएगा लोगों को। इंटरव्यू में जनरली रिजेक्शन रेट बिटवीन 30 to 40% है, समटाइम्स इट कैन गो एज हाई एज 50%। 50%, यानी कि आधे लोग जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली उनको कहा जाता है कि सॉरी जी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, प्लीज ट्राई अगेन, राइट? ऐसा ही है।
Absolutely. पहले ये नहीं हुआ करता था, आपको याद है पहले हमारे आपके जमाने में जब इंटरव्यू प्रोसेस वाज अ कंपलसरी पार्ट ऑफ एवरी एडमिशन, उस जमाने में रिजेक्शन रेट इन इंटरव्यू वाज वेरी लो, हार्डली 10-15% लोगों को जो है रिजेक्ट किया जाता था। मगर अब जो है जितने लोगों को इंटरव्यू कॉल किया जाता है, क्योंकि अब आईबीए मेजॉरिटी एडमिशन बगैर इंटरव्यू के दे देता है, तो वो जो बाकी लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल करता है उसमें से वो आधों को तकरीबन जो है वो एलिमिनेट कर देता है अनफॉर्चुनेटली, उनको नेक्स्ट राउंड कहता है प्लीज ट्राई अगेन। अच्छा जी, तो ये कट ऑफ स्कोर्स मौजूद हैं 220 का मतलब क्या हुआ इरफान, कितने सवाल हो गए जी टोटल? 55, 55 55 है ना जी। 55 क्वेश्चंस फॉर बीबीए, 55 फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। 55 को अगर ब्रेकअप करें तो आप सोचेंगे जी तकरीबन अगर मैथ स्ट्रांग है तो आपको कम से कम 30 करने हैं मैथ में और 25 करने हैं वर्बल में, राइट? 30 and 25, राइट? कम से कम भी, which is not very high if you think about it, you know. I mean, it's not impossible to do. I mean, 30 math questions, अगर आपकी math बहुत strong है या आपने सही से preparation की हुई है तो you should be able to do, right? You know, or on the other hand, if your verbal is very strong, you can do that, right? Yeah. और आप सोचें कि अगर 3 से 4 हज़ार एप्लीकेंट्स हैं और सिर्फ 150 स्टूडेंट्स का राउंड 1 में डायरेक्ट एडमिशन होता है, तो सिर्फ 150 स्टूडेंट्स ये स्कोर अचीव कर पाते हैं। दैट मींस कि यूजुअली टेस्ट में टाइम प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है या कुछ सवाल बहुत मुश्किल होते हैं जिसकी बेसिस पे स्टूडेंट्स ये स्कोर्स अचीव नहीं कर पाते। Absolutely, absolutely. So the biggest issue is that people panic in the test. Okay, they unfortunately don't know how to pace themselves. They get stuck on difficult questions. They waste time. You know, कई दफा लोग ब्लैंक आउट हो जाते हैं या स्ट्रेस में होते हैं, रात को नींद सही नहीं हुई होती है। अगेन ऑल ऑफ दोस थिंग्स कैन मैटर ऑन द टेस्ट डे एज वेल। सो बड़ा जरूरी है कि आप लोग तैयारी करते हुए उसका ख्याल करें, राइट? दुआ पूछ रही है सर, हाउ विल द वर्बल टेस्ट बी कंडक्टेड इफ द टेस्ट इज एमसीक्यू बेस्ड? बेटा, इट्स वर्बल से मुराद जो है वो इंग्लिश है, इट्स नॉट अ वर्बल स्पीकिंग टेस्ट, इट्स एन इंग्लिश टेस्ट बेसिस। जिक्र किया था हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, वोकैबुलरी, सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस करेक्शंस, उसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये हमारे कट ऑफ हो गया थ्रू सैट। इन कट ऑफ को भी जिक्र कर देना चाहिए इरफान, आपने जिक्र किया था कि सैट का कट ऑफ जो है, सो ये जो कट ऑफ है ये आप देख सकते हैं जी, ये 1430 कट ऑफ है फॉर बोथ बीबीए एंड बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस and also BS Economics and also BS Social Sciences. So if you had to go to IBA this year in round 1 through the SAT, you need to have a 1430 score, right? So that's a pretty high score, right? So which means that, as you mentioned, IBA का test भी एक अच्छा option है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो। Absolutely. जैसे मैंने कहा कि डायरेक्ट एडमिशंस का स्कोर यूजुअली बिटवीन 1400 एंड 1450 होता है। और साथ में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपने यहाँ पे बताई कि जिन स्टूडेंट्स का सैट के थ्रू टेस्ट एग्जाम्शन है और जिन स्टूडेंट्स का सैट के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन है, उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट गैप है, अप्रॉक्सीमेटली 150 to 200 पॉइंट्स का गैप है। यानी कि अगर आप सैट के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 200 पॉइंट्स एक्स्ट्रा लेने हैं। एज कम्पेयर टू दैट, अगर आप आईबीए के टेस्ट में देखें तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए आपको सिर्फ 8 पॉइंट्स एक्स्ट्रा लेने बनिस्बत उनके जिनको इंटरव्यू कॉल की जा रही है, यानी कि सिर्फ 2 सवाल एक्स्ट्रा सही करने। सो वंस अगेन इस डेटा को अगर क्विकली समराइज किया जाए तो डायरेक्ट एडमिशन अगर आपने लेना है, इफ दैट इज व्हाट यू आर टारगेटिंग, तो generally speaking, you have a better chance of getting a direct admission if you apply through the IB admission test. एब्सोल्युटली, बट मैं लोगों को ये भी इंकरेज करता हूँ कि अगर आप एसएटी देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए और उसकी तैयारी करके दें, बिकॉज एसएटी में अच्छा स्कोर लाना भी डेफिनेटली पॉसिबल है। और अब सैट का फॉर्मेट जो लास्ट ईयर से चेंज हुआ है, डिजिटल सैट हुआ है, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आ गई हैं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो लोगों को बहुत बुरा लगता था, बिकॉज रीडिंग का हमारे मुल्क में किसी को शौक नहीं है, तो अब जो है वो टेस्ट कंपेरेटिवली एक डिफरेंट तरह का टेस्ट हो गया है, इंटरेस्टिंग टेस्ट हो गया है, ज्यादा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हो गए हैं। यू विल एंजॉय डूइंग दैट नाउ मोर इंशाल्लाह। अच्छा जी, आगे बढ़े, क्योंकि लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये सेशन कब तक चलेगा। इरफान, क्या ख्याल है? 1 घंटा होने को आ गया है, हम तो 40 मिनट्स का प्लान। आई थिंक हमें अब 10 मिनट में रैप अप कर देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे भी आज बहुत सारे सेशंस हैं क्लासेस के, जो तकरीबन आधे घंटे में शुरू होने वाले हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, अंडरग्रेड राउंड 2 के कट ऑफ्स क्या थे जी? तो राउंड 2 के कट ऑफ्स जो मौजूद थे वो ये थे जनाब, थ्रू इंटरव्यू। अच्छा, डायरेक्ट एडमिशन 200 पॉइंट्स टोटल चाहिए था, जिसमें मिनिमम इंग्लिश 72 एंड मैथ आल्सो 72, राइट?
और यही थ्रू इंटरव्यू सही 2 इन मैथ, सही 2 इन इंग्लिश, बट टोटल जो कट ऑफ चाहिए था फॉर इंटरव्यू के लिए वो 192 था. सो अगर जिसका 192 आ गया उसको इंटरव्यू कॉल आ गई, जिसका 200 आ गया उसको कहा गया कि जी आपका डायरेक्ट एडमिशन हो गया, मुबारक हो. बस रिजल्ट्स प्लीज रिक्वायरमेंट सबमिट कर दें, अपनी फुलफिल कर दें. बाय द वे इरफान, एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बताता चलूं कि आपको तो खैर ये पता ही है, सबको ये बात नहीं पता होती. अगर आपके मिनिमम रिक्वायरमेंट मीट नहीं हुई तो आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा जी मुझे आप एडमिशन तो दे दें या मेरा एडमिशन होल्ड कर लें, मैं रिजल्ट्स इंप्रूव करके आता हूँ, नवंबर दिसंबर में वापस रीटेक्स दे के आता हूँ या अगले साल रीटेक्स दे दूंगा. आइए सॉरी जी, ये इस साल के लिए था और ये इस वक्त के लिए था. रिजल्ट सबमिट अगर अनफॉर्चुनेटली आप नहीं कर सकते जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, तो अब आप नेक्स्ट ईयर फिर अप्लाई कीजिएगा. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसका ख्याल रखना जरूरी है. सो कट ऑफ से अच्छा इरफान, ये देखें राउंड 1 और राउंड 2 में कट ऑफ का डिफरेंस देखा आपने, 92 92 220, और राउंड 2 में 72 72 एंड 200. ये क्या वजह होगी इरफान, कट ऑफ क्यों इतना चेंज हुआ एकदम से राउंड 1 दो वर्सेस राउंड 2? वजह ऐसी हो सकती हैं। पहली वजह तो ये बड़ी बड़ी ऑब्वियस है कि जब टेस्ट थोड़ा सा मुश्किल आता है तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ गिर जाता है, बिकॉज एवरीबडी परफॉर्म्स मिजरेबली आई वुड से. जब मुश्किल टेस्ट आएगा हर कोई थोड़ी सी बुरी परफॉर्मेंस देगा तो सबके स्कोर्स गिरेंगे, कट ऑफ स्कोर भी गिर जाएगा. और एक्चुअली ऐसा हुआ भी था कि राउंड 2 का जो टेस्ट था वो स्टूडेंट्स को थोड़ा ज्यादा मुश्किल लगा था एज कम्पेयर टू राउंड 1. दूसरी वजह ये हो सकती है ये कि देखिए कि विद इन द सेम ईयर भी टेस्ट में वेरिएशन कितनी ये ले आते हैं, यानी कि हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जी जो राउंड 2 का टेस्ट है और राउंड 1 के टेस्ट से सिमिलर होना चाहिए अगर आपने सेम ईयर में एडमिशन लेना है, बट अनफॉर्चुनेटली राउंड 2 का टेस्ट या तो बहुत कंपैरेटिवली आसान हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. दैट्स टू मच वेरिएशन. यस यस. Absolutely. और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि कुछ अच्छे स्टूडेंट्स जो अर्ली मूवर्स हैं, जो अर्ली प्रिपरेशन करते हैं, वो ऑटोमेटिकली राउंड 1 में compete कर रहे होते हैं. और उनका जब राउंड 1 में एडमिशन हो जाता है तो वो स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली राउंड 2 में दोबारा अप्लाई नहीं करते. तो जब वो कुछ अच्छे स्टूडेंट्स निकल जाते हैं कंपटीशन से तो फिर कंपटीशन पूल थोड़ा सा उसके मुकाबले में लेस competitive हो जाता है. तो उससे तो कट ऑफ जो है वो बढ़ना चाहिए. नहीं, जब बट स्टूडेंट हाँ, को स्कोर कम आएंगे अच्छा तो आप ये भी कह रहे हैं कि वो गिरेगा. अच्छा जो अच्छा स्टूडेंट्स है वो चले गए हैं, तो वो जो बाकी लोग स्कोर्स लेके आ रहे हैं वो इतने अच्छे स्कोर लेके नहीं आ रहे, तो उनका कट ऑफ. ओह ओके, आई गेट योर पॉइंट. दैट्स अ गुड पॉइंट. दैट्स अ वेरी वेरी वैलिड वे ऑफ लुकिंग एट. आई वाज थिंकिंग एट द अदर वे अराउंड के यार अगर अच्छे स्टूडेंट्स निकल गए हैं तो यू हैव मोर कंपटीशन. खैर, इन एनी केस दैट्स गुड पॉइंट. ओके, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं. आईबीए टेस्ट वर्सेस सैट टेस्ट, राइट. लेट्स टेक अ लुक एट दिस. ये पिछले 3 साल का डेटा है और इसमें आप देख सकते हैं कि राउंड 1 में लेट्स बिगिन विद 2023 बिकॉज वी डोंट हैव टू मच टाइम लेफ्ट. सो अगर आप चाहें तो इस डेटा की एक स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको बाद में रिव्यू भी कर सकते हैं ऑल आवर ऑडियंस. बीबीए के थ्रू एडमिशन, बीबीए के एडमिशंस इन 2023 राउंड 1 में बगैर सॉरी थ्रू द आईबीए टेस्ट 124 थे राउंड 1 में, और थ्रू एसएटी 71 थे. सो आप देख सकते हैं कि अच्छे खासे लोगों को एसएटी के थ्रू एडमिशन ऑफर हुआ. 36% वेंट थ्रू एसएटी इन राउंड 1. ओके, और जैसे इरफान ने कहा कि कई दफा ये होता है कि फिर वो जो लोग एक अच्छा पूल है उन्होंने राउंड 1 में एडमिशन ले लिया, तो राउंड 2 में जो है वो वो बहुत सारे लोग जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है, जिनका इतना अच्छा स्कोर नहीं आता, वो फिर अपनी इंप्रूवमेंट करके लेके आते हैं और वापस टेस्ट में बैठते हैं, वापस एसएटी के थ्रू अप्लाई करते हैं. तो राउंड 2 में आपने देखा कि एडमिशन ज्यादा ऑफर हुए हैं, टोटल 276 ऑफर हुए कंपेयर टू राउंड 1 व्हिच वाज ओनली 195, और उसमें 224 much bigger number was through the IBA test and much lesser through SAT. and इसकी जो वजह है वो बहुत सिंपल है, लॉजिकल सी बात है कि सैट जो है वो उसकी डेट्स अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर होती हैं. सो लोगों ने जिन्होंने सैट देना होता है उस टाइम पे दे चुके होते हैं और उन्हें अगर अप्लाई करना होता है तो वो राउंड 1 में अप्लाई कर देते हैं. तो जो मेजॉरिटी लोग जो सैट के बेसिस पे अप्लाई कर रहे होते हैं वो वैसे ही राउंड 1 में अप्लाई कर रहे होते हैं. राउंड 2 में कंपैरेटिवली कम नंबर या तो अप्लाई कर रहे होते हैं या उनके स्कोर इतने अच्छे कंपैरेटिवली नहीं होते. बहुत सारे लोग जो बाहर जाने का भी सोच रहे होते हैं वो एज आईबीए को बैकअप ऑप्शन रख रहे होते हैं, तो वो भी पहले अप्लाई करके अपना एक बैकअप ऑप्शन कंप्लीट कर चुके होते हैं. ऐसा ही है इरफान? बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही. आई थिंक इस पूरे डेटा की हो रही है, आगे भी यही डेटा है. एग्जैक्टली, यानी कि हम ये देख सकते हैं कि जी 36% इन राउंड 1 एंड 19% इन राउंड 2 थ्रू द एसएटी इन द ईयर 2023. दिस इज फॉर द बीबीए प्रोग्राम. लेट मी हाईलाइट दैट. ओके, और बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में भी कुछ ऐसा ही डेटा है. 43% इन राउंड 1 एंड ओनली 22% इन राउंड 2. एज यू कैन सी, दिस इज आल्सो इंटरेस्टिंग एंड इट सॉर्ट ऑफ इंडिकेट्स कि यार मेजॉरिटी जिन्होंने सैट के थ्रू अप्लाई करना होता है वो राउंड 1 में ही कर लेते हैं. आईबी अपनी प्रेफरेंस चेंज नहीं कर लेता, आईबी की प्रेफरेंस तो वही है, बट एज यू कैन सी दिस डज वेरी.
इकोनॉमिक्स में इरफान हम देखते हैं कि ऐसा जो है वो थोड़ा सा ये कम है। थ्रू एसएटी बहुत सारे लोगों ने एडमिशन लिया है बीएस इकोनॉमिक्स में इस साल राउंड 2 में। आप देख सकते हैं 30% वर थ्रू द एसएटी कंपेयर टू 34% इन राउंड 1, व्हिच इज मच बेटर देन एटलीस्ट व्हाट वी सॉ फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड बीबीए। सोशल साइंसेज में एसएटी वाले लोग काफी कम आए हैं। अभी कांट बी श्योर, आईबी डज नॉट पब्लिश दिस डेटा कि कितने परसेंट लोगों ने सैट के थ्रू अप्लाई किया था प्रोग्राम में, बट हम सिर्फ ये देख के बता सकते हैं कि जी अच्छा ये जो रिजल्ट आया इस पर हम बता सकते हैं कि कितने परसेंट लोगों को एडमिशन ऑफर हुआ है। सो अगर आप एसएटी के थ्रू जाना चाहते हैं, कट ऑफ्स आपके सामने मौजूद थे। मैं एक दफा फिर दिखा देता हूँ आपको जो कट ऑफ्स थे। ये कट ऑफ्स हैं जी, ये राउंड 2 के कट ऑफ्स हैं और ये राउंड 1 के कट ऑफ्स हैं, राइट। ये इनको नोट कर लीजिए, ये आपके लिए यूजफुल रहेंगे टू इंडिकेट टू यू कि वेदर आपने एसएटी के थ्रू जाना चाहिए या आपको आईबी टेस्ट के थ्रू जाना चाहिए। आपके पास ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहेंगे इरफान आप? नहीं, आई थिंक दैट शुड बी वेरी सफिशिएंट। एमबीए कट ऑफ्स ये रहे जी। एमबीए कट ऑफ्स आप देख सकते हैं कि कंपेयर टू बीबीए कंपैरेटिवली कम है। जो इंडिविजुअल मैथ और इंग्लिश के कट ऑफ्स हैं, हाउएवर टोटल कट ऑफ काफी है। और फिर उसके बाद में ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के पॉइंट्स भी हैं। सो आप देख सकते हैं कि 2023 में इंग्लिश मैथ का कट ऑफ वाज ओनली 60 आउट ऑफ 180, व्हिच इज 1/3 बाय द वे, व्हिच इज वेरी लो। इंग्लिश में भी 60 था, बट जो टोटल देखा जाए तो 120 जगह 140 इन्होंने कर दिया था, which is still pretty low, I would say. So, that sort of indicates to you the kinds of people that are applying through the MBA program, through the IBA test. That's why, the scores are not very, very high. But again, we would expect कि आप प्रिपेयर जरूर करें ताकि आप अपने चांसेस को स्ट्रॉन्ग कर लें। सर, हफ्सा जिया ने सवाल पूछा है, सर हाउ मेनी मंथ्स डू वी नीड टू प्रिपेयर फॉर राउंड 1 और राउंड 2? हम रेकमेंड करते हैं कि अगर आपने अपने चांसेस को मैक्सिमाइज करना है तो आप जरूर जो है वो अपनी तैयारी तो फुल कोर्स करें, 3 से 4 महीने का कोर्स करें, जिसकी डिटेल्स अभी हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं जी। अच्छा, ये कट ऑफ बताया था हमने आपको, पहले भी जिक्र किया था कि ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए जीमैट या जीआरई थ्रू जाना चाहते हैं तो ये आपको स्कोर्स रिक्वायर्ड हैं। जीमैट 600 आउट ऑफ 800, जीआरई 160, क्वांट 150 वर्बल। दैट्स अबाउट दैट. If you have any questions about GMAT and GRE, please feel free to ask them, or you can drop me an email as well, and I will respond to you, inshallah. अच्छा जी, स्कॉलरशिप्स, लॉट्स ऑफ प्रोग्राम्स अवेलेबल। आप देख सकते हैं जी, ये दीज आर सम ऑफ द प्रोग्राम्स दैट आईबीए हैज फॉर स्कॉलरशिप्स। फी का के लोगों ने मुझसे पूछा कि सर प्रोग्राम्स की फीस कितनी होती है। ऑन एवरेज आप अज्यूम कर सकते हैं कि तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपए पर सेमेस्टर की आपकी कॉस्ट आती है। साल की तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए की कॉस्ट आती है। बट आपके पास स्कॉलरशिप्स के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीड बेस्ड भी हैं, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड भी हैं। इनफैक्ट बहुत सारे अलमनाई हैं जिन्होंने आईबीए में स्टूडेंट स्पॉन्सर किए हुए हैं, और मुझे खुशी है कि मेरा जो अपना बैच है उन्होंने भी जो है वो आईबीए में अलमनाई प्रोग्राम के थ्रू हमने भी एक स्टूडेंट की फीस को स्पॉन्सर किया हुआ है, जो हर साल वो रिन्यू होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने और बहुत सारे अलमनाई ने ये इसको एज अ बेड़ा उठाया हुआ है कि जी हम स्पॉन्सर करेंगे स्टूडेंट्स को, तो जरूर अप्लाई करें। आईबीए अपनी वेबसाइट पे क्लियरली कहता है कि वी डू नॉट रिजेक्ट एडमिशंस ऑन द बेसिस ऑफ नीड, और आईबीए का एनटीएचपी प्रोग्राम भी है, नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम, जिसके थ्रू अगर आप जाते हैं तो वहां भी आपको स्कॉलरशिप्स मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एनीथिंग टू ऐड हियर इरफान? क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो फी स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहे थे, तो आईबीए की अपनी वेबसाइट पे जो फी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया हुआ है वो पर क्रेडिट आवर एक्सप्लेन किया हुआ है। सो Yeah. for each credit hour, the fee structure for an undergrad program is 24,200 rupees. अज्यूम कर Yeah. लेते हैं कि एक सेमेस्टर में एक स्टूडेंट एवरेज 15 क्रेडिट आवर्स लेता है, तो उसकी फी तकरीबन 3,60,000 रुपये बनेगी। तो जैसे कि आपने बताया कि 3 से 4 लाख अंडरग्रेड की फी होगी आपकी पर सेमेस्टर। पर सेमेस्टर ऐसे ही है, और इसमें फिर आप एडमिशन फर्स्ट ईयर में चार्जेस ऐड हो जाएंगे, प्लस ऑब्वियसली जो भी इनके एक्स्ट्रा करिकुलर चार्जेस वगैरह वो ऐड कर लेंगे। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए पर सेमेस्टर आपकी कॉस्ट आएगी। मैंने 12,000 रुपए पर सेमेस्टर के अंदर पढ़ाया है ये, 12,000 पर सेमेस्टर अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस जमाने में बहुत ही चीप था भाई। खैर आई गॉट लकी, और आप आई ये नहीं वाज बता रहे कि उस जमाने में डॉलर कितने का था?
हाँ, ये भी आपने बहुत एक वैलिड पॉइंट रेज किया, बट क्योंकि इस बारे में डिस्कस करने का टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं बचा, तो हम आगे बढ़ जाते हैं जी। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स की पोजीशंस बहुत स्ट्रांग रही हैं। जिस साल मैं आईबीए गया था उस साल आईबीए में 100 लोगों को एडमिशन मिला था अंडर ग्रेड प्रोग्राम के अंदर, और उसमें से 45 जो थे वो अनीस हुसैन के स्टूडेंट्स थे, तो एक्सीलेंट। दैट ट्रेंड ऑब्वियसली तो खैर स्टूडेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, प्रोग्राम्स बहुत बढ़ गए हैं, कंपटीशन भी ऑब्वियसली हर तरफ से आता है और डिफरेंट डिफरेंट जगहों से आता है, बट अल्लाह का शुक्र है हमारी पोजीशंस अभी तक मेंटेन्ड हैं, अच्छे पोजीशंस हमारी आती हैं, और बाय द वे वेरीफाइड पोजीशंस हैं। आप चाहें तो इनका तस्वीर खींच के इनको आप चेक कर सकते हैं एक्चुअल रिजल्ट्स के थ्रू। बहुत सारे लोग बहुत सारी पोजीशंस और क्लेम करते हैं, आप उनका डेटा भी चेक करें, फिर हमारा डेटा भी चेक करें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि जी डेटा कहाँ डिपेंडेबल है। ठीक है जी, बट अल्हम्दुलिल्लाह दीज आर एक्चुअल वेरीफाइड पोजीशंस, इनको आप चेक कर सकते हैं। और हमारे प्रोग्राम्स पढ़ाते कौन है जी? ये हम 4 भाई हैं, सलमान, इरफान, नोमान, रयान। वी आर ऑल बिजनेस ग्रेजुएट्स। रयान वेंट टू सीबीएम, ही रियली वांटेड टू गो टू सीबीएम, उनको शौक था सीबीएम जाने का। मैंने, इरफान ने और नोमान ने जो है हमने आईबीए से ग्रेजुएट किया है। और नुमान की खास बात ये है, जो ये तीसरे नंबर पे हैं, ये सीएफए क्वालिफाइड भी हैं माशाल्लाह। और इनको फाइनेंस का बहुत शौक है। इनफैक्ट हम तमाम भाइयों में सबसे ज्यादा जो फाइनेंस का शौक और नंबर का शौक है वो नुमान को है। इरफान की अपनी स्ट्रेंथ है, इरफान जो है उनको ज्यादा क्रिएटिविटी उस तरह की चीजों का शौक है। मैं जो हूँ वो मुझे शौक है मैथ पढ़ाने का और इंग्लिश पढ़ाने का और डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स पढ़ाने का। आजकल मैं लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट पढ़ा रहा हूँ। इरफान को बताया था, जिक्र किया था, मुझे कुछ एलसैट के प्रोग्राम्स के बारे में बड़ा शौक हो गया, तो मैं एलसैट पढ़ा रहा हूँ। आई एम डूइंग दोज लॉजिकल गेम्स एंड लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस, आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फन विद दोज। और रयान साहब जो हैं वो माशाल्लाह वो ही रिसेंटली बिकेम अ फादर एंड ही इज आल्सो डूइंग रियली वेल माशाल्लाह। उसके अलावा हमारे साथ और भी लोग हैं बहुत सारे। चंद एक हमारे जो स्टार्स हैं, सुपर स्टार्स हैं, हासिक पटेल साहब मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, सैट किया था कई साल पहले, और इंग्लिश अच्छी पढ़ाते हैं माशाल्लाह। ही इज एन इंग्लिश टीचर, बहुत एक्सपीरियंस है 16 साल का, और हमारे साथ माशाल्लाह एक कैंपस भी मैनेज कर रहे हैं और उसके अलावा इंग्लिश भी पढ़ाते हैं। बदर अब्दुल रज़ाक साहब माशाल्लाह जीनियस एट ऑल थिंग्स टेक्निकल and very sharp mind. He loves teaching math. Also, by the way, teaches chemistry and physics, O levels, A levels की, तो वो भी चीजें पढ़ाते हैं, वो भी शौक है उनको। इन्होंने एनईडी से अपना बैचलर्स किया था और अमेरिका से वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया था। बिलाल सईद साहब, क्या बात है जी बिलाल की। इरफान, बिलाल के बारे में आपके तो माशाल्लाह बहुत करीबी हैं, बताएंगे आप? फिलहाल जो है वो 2007 या 8 में हमारे स्टूडेंट थे नॉर्थ नाज़िमाबाद कैंपस पे, और फिर उसके बाद से इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। एंड ही इज आल्सो वर्क फॉर कोका कोला, ही इज वर्क फॉर यूनिलीवर। अभी जो है वो कनाडा में रेड बुल के साथ काम कर रहे हैं। माशाल्लाह और माशाल्लाह। 3 साल से हमारे साथ पढ़ाते आ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, आयशा, again, a teaching experience of 14 years, and Sadia Kamran, 13 years, mashallah, also very good teachers. And as you can see, Nusrat Ghaffar, by the way, उनका सरनेम भी गफार है। उसकी वजह ये है कि ये हमारी बड़ी बहन है। शी इज द एल्डेस्ट ऑफ ऑल ऑफ अस, और ये हमारे पूरे ग्रुप को राउंड ऑफ करती हैं। शी वाज अ ग्रेजुएट ऑफ ज़ैबिस्ट, एंड उनकी खास बात ये है, नुसरत की, हमारी बहन की, कि इन्होंने जो ज़ैबिस्ट से पढ़ा तो इनको फुल स्कॉलरशिप पे 4 साल पढ़ा। शी वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट एट ज़ैबिस्ट। 3.9 कोई इनकी जीपीए थी माशाल्लाह, और सारी एज थे सिवाय शायद 1 या 2 भी आए होंगे, तो आए होंगे। 4 साल उन्होंने इस तरह से किया। कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हैं, कंप्यूटर साइंस का बहुत शौक रखती हैं। शी हैज अ फुल टाइम करियर इन द आईटी सेक्टर इन पाकिस्तान। शी इज डूइंग वेरी वेल माशाल्लाह। बट मैंने इनको कन्विंस किया हुआ है कि एटलीस्ट आपने कुछ ना कुछ पढ़ाना है, तो शी टीचेस विद अस ऑन द वीकेंड्स, समटाइम्स ऑन द वीकडेज इफ नीड बी। एंड शी इज, बाय द वे, 16 साल का एक्सपीरियंस उनका भी है, तो ऐसा नहीं है कि जी कल पढ़ाना शुरू किया उन्होंने। 16 साल से माशाल्लाह पढ़ा रही है और बहुत अच्छा पढ़ाती है। सो हमारी जो टीम है उसकी खास बात है वो ये है कि हमारे जो टीचर्स हैं वो कोई किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अभी नहीं हैं, वो प्रोफेशनल टीचर्स हैं, और उस टेस्ट प्रिपरेशन पे उन्होंने सारा फोकस किया हुआ है और अपने आप को डेवलप किया हुआ है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज फील फ्री, आए हमारी क्लासेस को लीजिए और ट्रायल क्लासेस लीजिए। अच्छा जी, ये हमारे फोन नंबर्स हैं, अगर आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास ये रहें। बाय द वे, यू कैन ऑलवेज लुक देम अप ऑन द इंटरनेट एज वेल। अच्छा, अब सवाल जो है वो ये है कि अब मैं कुछ सवालों के जवाब दे देता हूँ, हमारे पास 4-5 मिनट ही बाकी हैं, देन वी डू हैव टू सॉर्ट ऑफ रैप अप बिकॉज आई नीड टू गो एंड जॉइन माय सेशंस एज वेल।
तो आईबी रिजल्ट्स कब तक आते हैं? टेस्ट के विद इन 2 to 3 वीक्स आपका रिजल्ट आ जाता है। आईबीए टेस्ट डेट पहले से बताता है कि जी किस डेट को टेस्ट आना है, रिजल्ट आना है। सो जब जिस दिन आपका टेस्ट होगा उसके 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। कम ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते लगते हैं, उससे कम टाइम में आ जाता है इंशाल्लाह। ठीक है जी। दिलशाद पूछ रहे हैं, स्टूडेंट्स हु हैव टू अप्लाई फॉर बोथ राउंड सेपरेटली और द स्टूडेंट्स हु फेल एट राउंड 1 आर सेंट डायरेक्टली टू राउंड 2? नहीं, यू हैव टू अप्लाई टू बोथ राउंड सेपरेटली। तो आप राउंड 1 के लिए अप्लाई करेंगे, क्लियर हो गया, ग्रेट। नहीं हुआ तो फिर आपको राउंड 2 के लिए वापस अप्लाई करना पड़ेगा और वापस फी पे करनी पड़ेगी टेस्ट की। हफ्सा जिया पूछ रही है, सर गाइड अबाउट द फील्ड्स व्हिच आर गोइंग टू बी प्रोवाइडेड बाय आईबीए 2024। आप बेसिकली आप प्रोग्राम्स पूछ रही हैं, तो मैंने बताया था शुरू में प्रोग्राम्स जो हमारे अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं आईबीए में। लेट मी क्विकली फाइंड दैट। इरफान, डू यू वांट टू हैंडल सम अदर क्वेश्चन इन द मीन टाइम? 7 प्रोग्राम्स हैं, तो वो लिस्ट सलमान भाई आपके सामने फ्लैश कर देते हैं। अच्छा, वैसे ये ओम कुमार के क्वेश्चन का मैं स्पेसिफिक आंसर दे देता हूँ कि यूजुअली आईबीए जो रिजल्ट अनाउंस करता है, वो जो पहला रिजल्ट अनाउंस करता है टेस्ट का, वो यूजुअली विद इन 10 डेज अनाउंस कर देता है, और फिर उसके बाद वो इंटरव्यू लेता है और उसका फाइनल रिजल्ट अनाउंस करने में टोटल प्रोसेस अप्रॉक्सीमेटली 3 वीक्स का लगता है। बिल्कुल सही। हाउ इज द आईबीए टेस्ट डिफरेंट फ्रॉम सैट? आईबीए के टेस्ट में और सैट के टेस्ट में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। मैं कुछ बेसिक डिफरेंसेस लिस्ट डाउन कर देता हूँ। आईबीए के टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, सैट में कैलकुलेटर अलाउड है। आईबीए के टेस्ट में टेस्ट फॉर्मेट फिक्स्ड नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कौन से एरियाज आ सकते हैं, कौन से एरियाज नहीं आ सकते, वो फिक्स नहीं है। सैट में फिक्स्ड है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन से एरियाज आएंगे। आईबीए के टेस्ट में डायरेक्ट वोकैबुलरी आती है, सैट में डायरेक्ट वोकैबुलरी नहीं आती। आईबीए के टेस्ट में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आते हैं मैथ के अंदर, जैसे कि फॉर इंस्टेंस हम बात कर लेते हैं मेंटल प्रोबेबिलिटी की बात कर लें, परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस की बात कर लें। वो सारे टॉपिक्स जो आईबीए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी अब सैट में नहीं आता, तो ये वो टॉपिक्स हैं जो मैथ में आईबीए के टेस्ट में आते हैं बट सैट में नहीं आते। सो काफ़ी डिफरेंसेस हैं। ओवरलैप जरूर है बट इट्स नॉट एब्सोल्युटली द सेम। हाँ, यानी आप ये नहीं कह सकते कि जी मैंने एसएटी तैयारी कर ली तो मेरा आईबीए टेस्ट तैयार हो गया, राइट? या मैंने आईबीए टेस्ट की तैयारी कर ली तो मेरा एसएटी तैयार हो गया। दोनों टेस्ट में काफी वेरिएशन है। इसका बेस्ट तरीका देखें, बात सुने, सबसे आसान तरीका ये है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट कर लें, राइट? डायग्नोस्टिक टेस्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप हमारे किसी भी कैंपस आ जाएं और या फोन करके उनसे टाइम सेट कर लीजिए, अपॉइंटमेंट सेट कर लीजिए, आए और बैठ के हमारे पास एक डायग्नोस्टिक टेस्ट कर लें एसएटी का। अंदाजा हो जाएगा आपकी क्या पोजीशन है इस वक्त। आप आपको स्कोर रिपोर्ट बना के देंगे, बाकायदा टॉपिक वाइज क्वेश्चन टाइप बना के देंगे कि जी ये आपने ठीक किया, ये गलत किया, ये आपका अच्छा है, ये आपका अच्छा नहीं है। यू विल नो एग्जैक्टली वेयर यू वेंट रॉन्ग। ठीक है जी। सो डू दैट, टेक एडवांटेज ऑफ दैट। बाय द वे कोई चार्जेस नहीं है इसके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कम इन एंड डू इट, बट प्लीज बुक एन अपॉइंटमेंट बिफोर यू डू दैट, ताकि स्टाफ आपके लिए जगह रख के आपको बता सके कि इस टाइम पे आ जाइए। अच्छा जी, एक सवाल जो आया वो ये आया कि बीबीए या एसीसी एक एग्जाम्प्ट पेपर्स हो जाते हैं। ये एग्जाम्प्ट उस वक्त होते हैं जब आपने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के थ्रू बीएस किया, वो बीबीए के थ्रू नहीं होते बेटा। सो दैट्स द डिफरेंस। अच्छा जी, सवाल जिन्होंने पूछा था प्रोग्राम्स कौन से हैं, तो ये स्क्रीन पे आपके मैं ले आया हूँ। ये सारे प्रोग्राम्स हैं। एक सवाल ये राशिद मारफानी साहब का कि प्लीज सजेस्ट मोर गुड यूनिवर्सिटीज आईबीए के अलावा। बिजनेस के लिए अगर आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली लम्स नंबर 1 and 2, आईबीए एंड लम्स का ये कॉम्पिटिशन चलता रहता है। उसके अलावा सीबीएम इज ग्रेट। कराची के अंदर अगर पूछा जाए, केएसबीएल, कराची स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लीडरशिप, मेरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये वो यूनिवर्सिटी बनेगी फ्यूचर में अनकरीब जो कि आईबीए और लम्स को के कंपटीशन देगी। अभी भी ग्रेजुएट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, मास्टर्स प्रोग्राम से ग्रेजुएट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, फैकल्टी स्ट्रांग है। अगर उसी तरह से फोकस ये लोग चलते रहे और डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए तो KSBL is going to be brilliant. I think it's a very good option. लोग उसको कंसिडर नहीं करते, अनफॉर्चुनेटली उनको पता नहीं होता, बट आप देखेंगे चंद सालों में KSBL is going to be right up there इंशाल्लाह। मेरा कोई ताल्लुक नहीं by the way KSBL से। I've been there, I've seen their facilities, I've met their faculty members, and I think they are brilliant people working over there. So please look at that as well. और उसके अलावा हम ज़ैबिस्ट एज एन ऑप्शन मौजूद है। ज़ैबिस्ट का कैंपस थोड़ा सा इशू है, बट अदर देन दैट यू नो इट्स अ गुड प्लेस टू गो एंड स्टडी एज वेल। काफ़ी लोकेशन वाइज काफ़ी आसान है, सो दैट इज़ एन ऑप्शन। अगर आप लाहौर वगैरह की तरफ देखना चाहते हैं तो यू नो नस्ट का बिजनेस स्कूल है, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है। लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इज बाय द वे क्वाइट गुड एक्चुअली, यू नो जिस तरह से कराची में CBM है, उस तरह से लाहौर में LSE है, बट
उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. सो आई वुड सजेस्ट कि लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को भी देखना चाहिए एज अ बिजनेस स्कूल. और इफ आई एम आई मिसिंग समथिंग इरफान, कोई जहन से मेरी यूनिवर्सिटी निकल तो नहीं रही बिजनेस के लिए? और हमारे पास एनईडी ने भी एक बिजनेस प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है आई बिलीव, और कराची यूनिवर्सिटी का भी अपना एक बिजनेस प्रोग्राम है जो कि आईबीए के बराबर में ही है, कॉमर्स डिपार्टमेंट जो कहलाता है. आई बिलीव आपने सारे अच्छे ऑप्शंस कवर कर लिए. एक एक क्वेश्चन स्टूडेंट का आया है कि भाई व्हेन विल ऑनलाइन क्लासेस फॉर आईबीए स्टार्ट एट नईस हुसैन. तो यूजुअली हमारे पास आईबीए की प्रिपरेशन के बैचेस सितंबर अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट होते रहते हैं, विच मींस हर महीने आपको हर कैंपस पे एक या दो बैचेस मिल जाएंगे. और हमारे पास जितने भी बैचेस प्रिपरेशन के होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर हाइब्रिड बैचेस, व्हिच बेसिकली मींस कि वो क्लासेस ऑन कैंपस भी हो रही होती हैं और वो साथ साथ ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम भी हो रही होती हैं. हमारे सारे स्टूडेंट्स को एक अनीस हुसैन पोर्टल का एक्सेस मिलता है. उस पोर्टल पे सारी क्लासेस हमारी लाइव स्ट्रीम होती हैं. अगर आपने क्लास ऑन कैंपस ली है बट स्टिल आप घर जाके कुछ कॉन्सेप्ट रिव्यू करना चाहते हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग पोर्टल पे मौजूद होती है. सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग पोर्टल पे मौजूद होती है और आप उसको रिवाइंड फॉरवर्ड करके अपनी पेस पे चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं. जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट एडवांटेज है. और ये जो है, ये इसका एडवांटेज ये है कि आपके पास सारा डेटा जो है मौजूद है. जो आपकी क्लास आपने खुदा ना खासा मिस भी कर दी तो आप रिकॉर्डिंग देख के उसको कैचअप कर सकते हैं. बट इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लासेस मिस करा करें जी. क्लासेस टाइम पे लें, रेगुलर बेसिस पे लें, लाइव लें. ये तो एक सिर्फ बैकअप के तौर पर होना चाहिए कि जी मैंने क्लास मिस कर दी तो एटलीस्ट मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, या मुझे कोई चीज़ रिव्यू करनी है तो मेरे पास चीज़ मौजूद है. अच्छा जी, दैट्स इट. कोई और आखिरी सवाल क्वेश्चन जी मैं ले लेता हूँ. हैंडल करना हो? आखिरी क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि जो है वो आपके जैकेट को देख के लग रहा है कि वहाँ पे सर्दी बहुत है, तो क्या आप हमें सर्दी की सूरत हाल बता सकते हैं वहाँ पे? ये सवाल आया या आप पूछ रहे हैं मुझसे? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ. सर्दी हो गई है जी भाईजान, शुरू हो गई है सर्दी. और इट इज कोल्ड. यस, इट वाज वेरी प्लेजेंट लास्ट वीक, बट सिंस यस्टरडे इट हैज बिकम कोल्ड, एंड सो आई नीड टू मेक श्योर दैट मैं स्वेटर वेटर पहन के बैठूं घर में भी. बट या अल्हम्दुलिल्लाह वेदर इज नाइस. आपको तो मालूम है यहाँ तो चलता रहता है. अब हीटर शुरू होने वाले हैं जी. एक सवाल आया सर, व्हाई डोंट यू कम टू थॉट बिहाइंड थिंग पॉडकास्ट? अच्छा जी, ये उमर सिद्दीक साहब का सवाल है. चलें इस बारे में I'm not very savvy about how these podcasts work, but let's see. Inshallah, Omar, maybe you can guide me, and maybe we'll do something about this. ठीक है जी, I would love to hear from you. How do you get in touch with me? Let's see, you want to get in touch with me. Okay, so you can message me on Facebook. Hopefully, I will see that and respond to that. These are our email addresses. मेरा और इरफान का दोनों का मैंने डाल दिया है. Salman@anishusain.com and Irfan@anishusain.com, info@anishusain.com, and website मौजूद है जी. We are located in Pakistan, in Karachi, but we teach our courses throughout the world. Obviously, अब तो Zoom का ज़माना है, तो हम throughout the world पढ़ाते हैं. मैं इस वक्त मुल्क से बाहर हूँ. इंशाल्लाह चंद महीनों में वापस आ जाऊँगा, and I will be taking my live classes from there as well. But right now I'm teaching online along with my other colleagues, Irfan, Noman, Rayyan, Badr, Haziq. We're all doing online classes. और हमारा तरीकाकार ये होता है कि एक टीचर पूरा कोर्स नहीं पढ़ाता, डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है ताकि हर आदमी जो है वो अपनी एक्सपर्टीज के मुताबिक उस चीज को हैंडल कर सके. राइट. सो आप चाहें तो हमारे किसी कैंपस को ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, कंप्लीटली अप टू यू. और हम जो है विल बी हैप्पी टू अकोमोडेट यू एंड हेल्प यू आउट. ठीक है जी. और जिसने वो मुझसे बात करनी है जी, कोई सवाल पूछना चाहता है, प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप मी एन ईमेल, सेंड मी योर व्हाट्सएप नंबर, हम बात कर लेंगे. वी कैन डू अ Zoom मीटिंग एज वेल इफ यू वांट एनी हेल्प. कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मीट यू. आई डोंट माइंड. आई लव मीटिंग माय स्टूडेंट्स. I love giving my thoughts, my experience, and hopefully benefiting you regardless of whether you come study at Amazon or not. Right. And Dilshad पूछ रहे हैं जी, प्लीज ब्रीफ अबाउट मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप. मैंने आपको जिक्र किया था कि ये स्कॉलरशिप की डिटेल्स हैं जो कि आईबीए में अवेलेबल है. मैं स्क्रीन पे ले आता हूँ, इनको देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आपको इनके लिए अप्लाई करना पड़ेगा डायरेक्टली थ्रू आईबीए. और ये इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जी आपने जीपीए मेंटेन करनी होती है और आपने कुछ रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी होती हैं. उसके बेसिस पर आपको ये मिल सकती हैं. एनटीएचपी का प्रोग्राम है, नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम, उसके लिए अप्लाई कर दीजिए. वो बहुत यूजफुल है. उसमें आईबीए आपको अपने हिसाब से तैयारी भी कराएगा टेस्ट की,
और आपको जो है वो अच्छा, बाय द वे IBA जो अपने पास से टेस्ट की प्रिपरेशन कराता है, उसका IBA का अपने टेस्ट से कोई खास ताल्लुक होता नहीं है, वो डिपार्टमेंट डिफरेंट है, ये टेस्टिंग डिपार्टमेंट डिफरेंट है। तो कई लोग ये अज्यूम करते हैं कि जी IBA के टेस्ट की तैयारी हम IBA से ही करेंगे तो वो हमारी बेहतर तैयारी होगी। ऐसा मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं होता। बहुत फर्क होता है बेस्ड ऑन, बिकॉज वो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे होते हैं वो एक सैलरी पे होते हैं, उनका एक सर्टेन प्रोग्राम होता है, एक फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स कंप्लीट करने होते हैं। हमारा डिफरेंट लेवल होता है, हम अपने हिसाब से जितने आवर्स बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हम फुलफिल कर सकते हैं। सो NTHP जरूर अप्लाई करें, बट तैयारी भी प्रॉपरली करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। इरफान, कोई और सवाल या हम चलें, बिकॉज वी नीड टू गेट मूव ऑन, यू नीड टू गेट मूव ऑन, आपने भी That जाना should है be एयरपोर्ट, it. आई बिलीव। It was a pleasure speaking to all of you. You already have our email addresses. हम अपने campuses पे भी available होते हैं, हमारा staff भी available होता है, आप हमें reach out कर सकते हैं, कोई भी concerns हो। आपके WhatsApp group भी already बना लिया गया था session से पहले, वहाँ पे reach out कर लें and we will respond to you inshallah. एक्सलेंट एक्सलेंट, थैंक यू सो मच। एक फाइनल सवाल आया जी, कराची यूनिवर्सिटी का BBA प्रोग्राम कैसा है? इट्स अ वेरी गुड बैकअप प्रोग्राम, जरूर अप्लाई कीजिए। और KSBL भी करें, CBM भी करें, JAVS भी करें, हर जगह अप्लाई करें। मैं लोगों से हमेशा यही कहता हूँ कि हर जगह अप्लाई करें। जब एडमिशन लेटर हाथ में होना, फिर फैसला कीजिए कब मैंने कहाँ जाना है। तो आपने अभी से सोच लिया कि जी मैंने अप्लाई नहीं किया, ये एक बहुत बड़ा मसला है। ये लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बड़ा मसला है कि जी मैंने सिर्फ IBM अप्लाई किया था, कहीं और अप्लाई नहीं किया। अरे भाई, क्यों नहीं किया? अप्लाई तो करें ना यार, आपको एक कॉस्ट, एक फीस ही जा रही है ना, 3-4 हजार रुपए एप्लीकेशन फीस है, वो भर दें। इतनी सस्ती सी फीस आपको कहाँ मिलेगी दुनिया में यार? 3-4 हजार रुपए में आपने अप्लाई कर दिया। बट अप्लाई करें, ऑफर्स हाथ में ले आए, फिर फैसला करें कि यार मैंने कहाँ जाना है। राइट, अभी आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, अप्लाई आपने एक जगह पे किया हुआ है, फिर खुदा ना खास्ता 1 साल वेट करना पड़ा आपको अगले साल एडमिशन के लिए, तो क्या वेट करेंगे? डजंट मेक सेंस ना। सो प्लीज 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 मेरे भाइयों बहनों, हर जगह अप्लाई करो ताकि तुम लोगों के पास ऑप्शन अवेलेबल हो। ठीक है जी, चलें, ओके, टेक केयर गाइस, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। हमें ईमेल जरूर ड्रॉप कीजिएगा और हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा हमारे फेसबुक पे, और होपफुली विल डू मोर सेशंस लाइक दीज। हमें एडवाइस देते रहें आपको और क्या सेशंस सुनने हैं, तो हम आपके लिए और सेशंस इस तरह के कंडक्ट कराते रहेंगे। एक चीज हम और जरूर कराते हैं, वो ये है कि हमारे साथ कई दफा यूनिवर्सिटीज आती हैं और उनको भी हम लाइव लेते हैं, ऑनलाइन लेते हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं। रिसेंटली आई बिलीव इरफान SKBZ वाले आए थे, नहीं सॉरी, DHS वाले आए थे, DHS वाले आए थे, उन्होंने एक ऑनलाइन सेशन भी किया था जो सादिया ने कंडक्ट किया था, वो भी मौजूद है। टेक अ लुक एट दैट एज वेल इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट द DHS यूनिवर्सिटी। टेक केयर, थैंक यू इरफान, टेक केयर। Thank you जी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज जी।